Hello everyone, this is Fazan from Regrowtech and today is our day 5 and we we have already covered up till we were actually working on the operators earlier, and we have already covered unary operator uh, and arithmetic operator in our last class. And now, as I already mentioned, we won't be going much into detail of the shift operators and the bitwise operators. The next operator that we are going to study now is the assignment operator. What exactly is an assignment operator? We'll just see. And let's move to our and we can just check what exactly is the assignment operator. So assignment operator is for assigning values. So already we have seen when we were using a variable, like suppose we were writing int and then your num1. This is part of your assignment operator. Okay, so whenever we were writing num1 equal to 10, so what exactly were we doing? There was a memory location called as num1 जहां पर हम लोग क्या स्टोर कर रहे थे, वी वर पुटिंग दिस वैल्यू 10. यहाँ पे हमारा वैल्यू 10 जा रहा था, सो वी वर असाइनिंग आवर वैल्यू. तो हम लोग यहाँ पे अपनी वैल्यू को असाइन कर रहे थे एग्जैक्टली. तो दिस particular operator that you see here, this equal to, this is your assignment operator. So this is example of one of the assignment operators that we have. Apart from that, we have another few other operators as well. So whenever we say, suppose int a is equals to suppose 2, we're just taking an example यहाँ पे, and we are writing a plus equal to say 3. So what this implies is, इसका मतलब क्या होता है, it means a is equal to a plus 3. ठीक है. So whatever was here, जो भी पार्ट यहाँ पे था, that directly moves to the other side of the equal to sign. इसका मतलब होता है ये, it automatically moves to the other side. यहाँ पे आप देखो, ठीक है. And then what will be the answer for this one? ये क्या हो जाएगा? We will have now 2 for a. What is the value stored in a? We have 2. So this will be 2 plus, and it will be 3 only. So the total that we will get is 5. Now the value stored in a is 5. Okay. So this is what happens when we have an operand. यानी ये जो plus sign है, this is called, sorry, ये जो plus sign है, this is called operator. Okay. So ये जो operator है, we are actually moving it to the right side. हम लोग right side ले जा रहे हैं equal to sign के, whenever we have it on the left side. ठीक है. And similarly it will work for आपका a minus. अगर a minus equal to something है, suppose it is 5, so it will be क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a is equals to a minus 5. ठीक है. And similarly we will have for a multiplication and then equal to, then a and then your divide sign. So everything that you see here, and a modulus even. ठीक है. So these are few things that we have for assignment operator. Apart from that, as I already mentioned, we are going to skip our bitwise and shift operator. So we have other two as well, but we are not going to go into much detail on those things. Okay, so we are just omitting these part, and percent equal to or equal to, these parts we are just skipping for now. Okay, so we are done with assignment operator. This is all about assignment operator that we have. And next thing that we have is your relational operator that we are going to study. It is actually this particular thing that we are going to look into, relational operators. What exactly are our relational operators? So moving on to our relational operators. See, relational operators होते क्या? Relational operators
are those operators that define a relationship. दो वेरिएबल के बीच में वो एक रिलेशनशिप बताता है. लाइक जैसे क्या हो सकता है हमारा, सपोज वी हैव इंट a equal to 5, int b, or you can take num1 or num2. okay, so this is equal to 10. तो यहाँ पे ये क्या है, दिस टेल्स अ रिलेशनशिप. तो इसमें क्या क्या हमारे पास आते हैं ऑपरेटर्स, a is greater than b, a is less than b, a is greater than equal to b, a is less than equal to b, a is equal to b, and a is not equal to b. ठीक है. So these are few operators that we have inside our relational operators. एक और होता है instance of, but that too we are not going to cover at this particular moment. ठीक है. तो यहाँ पे अभी क्या है, we'll just see कि हमारा क्या है कि यहाँ पे we are just trying to see a relationship. यहाँ पे is A greater than B? We are asking a question over here. We are asking a question over here. Is A greater than B? तो ये क्या है, it will either give us true or false, right? कि A बड़ा है या नहीं B से. तो we'll see 5. In this particular situation, अगर मैं इस केस की बात करूं तो what will be our answers? हमारा आंसर्स होगा आपका this will be A greater than 5. No, this is false. A is less than 10. Sorry, 5 is less than 10. So this will be your true. And then this will become your false because those are not equal and A is also smaller than. तो ये हो जाएगा आपका true. Let me use this true. Okay. A equal to B. This is false. And A not equal to B. This will give you true. ठीक है. तो वी कैन यूज एनी ऑफ दीज, हम लोग इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं टू डिफाइन आवर रिलेशनशिप. या फिर मुझे अगर चेक करना है, अगर मैं बोलता हूं जस्ट टू चेक कि दो नंबर इक्वल है कि नहीं, तो व्हाट वी विल गो विथ ए इक्वल टू बी, ये वाला लगाएंगे एंड हम लोग चेक करेंगे कि वो लोग इक्वल है कि नहीं है. ठीक है. सो ये चीज. बट एंड ऑल्सो वन थिंग टू नोट हियर कि हमारा जो रिटर्न टाइप होता है, जो रिटर्न टाइप है हमारा यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली ऑफ बूलियन टाइप. ये क्या है, ये बूलियन टाइप का हमारा रिटर्न टाइप होता है. या फिर हम लोग आइदर वी आर गेटिंग फॉल्स और वी आर गेटिंग ट्रू. करेक्ट. तो ये हमारा हो गया बेसिकली समथिंग दैट वी वांटेड टू नोट. one more thing I'll just ask you to note here is, see here we are using double equal to and we are not using single equal to tell our relationship. Generally जब हम लोग हिंदी में बात करते हैं, how do we say is A equal to B, is A equal to B, but here what we are writing, A equal to B. Normally हम लोग क्या बोलते हैं, normally we say let me just scroll this a little up. Yeah, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं normally is A is a variable equal to B, ये होता है. ठीक है. तो it should have been like A equal to B. ठीक है. it should have been like A equal to B. लेकिन यहाँ पे हम लोग A equal to B नहीं लिखते हैं बिकॉज ये क्या है, दिस बिकम्स योर असाइनमेंट ऑपरेटर. क्यों? क्योंकि अगर हम A equal to B करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, वी हैव अ मेमोरी लोकेशन जिसका नाम सपोज A है and it is having, let's take 5 from above example I'm taking, and then we also have one more memory location जो B के नाम का है, and what it will take, it will have your 10. ठीक है. और जब हम लोग ये वाला पार्ट करते हैं, वेन एवर वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस जस्ट टू चेक, अगर हम लोग चेक करने के लिए ये करेंगे तो व्हाट विल हैपन, ए के अंदर A इक्वल टू B का मतलब होता है असाइन द वैल्यू ऑफ B टू A. ठीक है. B की वैल्यू को A के अंदर डालो, ये हो जाता है. यानी जब भी ये सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, दैट मीन्स वी हैव टू असाइन द वैल्यू ऑन द लेफ्ट we have to assign the value on the right side of the equal to sign to the variable at your left side of the equal to sign. करेक्ट. तो अगर A equal to B अगर हम लोग लिखते
थिंकिंग की हम लोग चेक कर रहे हैं इक्वालिटी, तो ये क्या हो जाता, ये आपके इसके अंदर का वैल्यू को 5 हटाकर ये क्या कर देता, इट वुड हैव स्टोर्ड 10। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इक्वल कर रहा है, राइट। हम लोग को देखो यहाँ पे जब हम लोग लिखते हैं ए इंट ए इक्वल टू 2, तो ए के अंदर 2 जाता था, ए के अंदर 2 जाता था, करेक्ट। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ए इक्वल टू 5, ये वाला ऑपरेशन करने के बाद, तो हमारा ए क्या हो जाता, ए हमारा हो जाता यहाँ 5। ठीक है, तो इक्वल टू करने से क्या होता है, उसके अंदर वैल्यू असाइन होती है, दैट इज वाई इट बिलोंग्स टू द असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इट डजंट बिलोंग टू योर रिलेशनल ऑपरेटर। सो जस्ट टू डिस्टिंग्विश दिस थिंग, याद रखना क्या है, जब भी हम लोग को जब भी चेक करना है कि इफ टू नंबर्स आर इक्वल और नॉट, वी आर गोइंग टू यूज ए इक्वल टू, ठीक है, ए इक्वल टू बी, ये याद रखना है। ठीक है, या फिर ए इक्वल टू वट एवर द नंबर यू वांट टू चेक। ठीक है, या फिर नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को ये चेक करना है। ओके, नाउ मूविंग टू वन मोर थिंग, दैट इज ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये नॉट क्या है, देखो ये नॉट लिखने का तरीका क्या है, वी हैव एन एक्सक्लेमेशन साइन। तो जब भी हम एक्सक्लेमेशन साइन कहीं पे देखते हैं, तो दैट मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू। ओके, दैट मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू। तो चलो नॉट इक्वल टू को थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं। सपोज जब हम लिखते हैं बूलियन x इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है, जब हम ये ऐसा लिखें कि बूलियन x इक्वल टू फॉल्स, तो ये क्या करता है, इफ आई एम प्रिंटिंग समवेयर SOPLN means system dot out dot println, if I am doing not of x, ठीक है, if I am doing not of x, तो what will be my answer, आंसर होगा मेरा false नहीं होके क्या हो जाएगा, ये true, that is not false, not x में क्या है false, तो not false का मतलब क्या होता है true। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे पास ये है अगर मेरे पास है boolean y is equals to true, or if I am also doing printing, or if anywhere I am just doing this thing not y, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट y में ट्रू, नॉट y मतलब क्या होता है, नॉट y मतलब होता है false। ठीक है, तो whenever you see not in front of any boolean value, तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर वो ट्रू है तो that becomes your false, and if it was false तब वो क्या हो जाता है, ट्रू बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि नॉट क्या करता है अगर एक्सक्लेमेशन साइन कहीं पे देख रहे हो, दैट मीन्स इट इज चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द बूलियन वेरिएबल। ठीक है, सॉरी। So this was all about our relational operators. ठीक है, after this we will be moving to our third operator type, that is, let's see what it is. तो हमारा जो थर्ड टाइप है, that is now ternary operator. Okay, this is ternary operator. तो ternary operator exactly होता क्या है, we'll just have a quick look on that as well. तो ternary operator जो है, let me just ternary operator, ठीक है, तो हमारा जो ये ternary operator है, ये exactly होता क्या है इसमें, देखो टर्नरी ऑपरेटर में जैसे कि हम लोग हर जगह यूज कर रहे थे लेस देन इक्वल टू या इक्वल टू या प्लस इक्वल टू, उस तरह से, तो टर्नरी ऑपरेटर में जो दो यूज होते हैं वो सिंबल्स हैं, वो क्वेश्चन मार्क एंड देन योर कोलन। ठीक है, कोलन है, सेमी कोलन नहीं है, याद रखोगे ठीक है, तो इसको लिखने का सिंटेक्स क्या है, फर्स्ट विल लुक एट द सिंटेक्स। तो सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स इज एक्चुअली वे ऑफ राइटिंग, कि कैसे लिखा जाता है इसको। ठीक है, इसको सिंटेक्स बोला जाता है कि लिखने का कैसा तरीका है। तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी विल डू इज वी विल जस्ट राइट अ कंडीशन। ठीक है, और याद रखना है हम लोग जब भी रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते थे, जनरली वी वर हैविंग अ कंडीशन, हम लोग पूछते थे इज ए ग्रेटर देन बी, इज ए लेस देन बी, इज ए इक्वल टू बी, इज ए नॉट इक्वल टू बी। तो वहां क्या है, हम लोग क्वेश्चन रहता था, राइट। तो जब भी कंडीशन की बात होती है तो नंबर, खास कर याद रखो नंबर सिस्टम में, ठीक है, नॉट स्पीकिंग अबाउट आगे के कॉन्सेप्ट्स, अभी फिलहाल नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो नंबर सिस्टम में जब भी हम लोग कुछ करेंगे तो कंडीशन विल कंसिस्ट ऑफ योर रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद क्या है, वी विल हैव अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कंडीशन हो गया, कंडीशन इफ यू आर आस्किंग देन वी पुट अ क्वेश्चन मार्क, राइट। तो क्वेश्चन मार्क हम लोग लगाएंगे एंड देन वी विल हैव टू पार्ट्स। तो इसमें क्या होगा, एक ट्रू पार्ट है एंड देन इज योर कोलन साइन, जो हमारा कोलन था। देखो हाउ वी आर यूजिंग इट, कि ट्रू पार्ट है और ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट को सेपरेट आउट करने के लिए वी आर यूजिंग कोलन साइन। ठीक है, ये हो जाएगा फॉल्स पार्ट। ठीक है, तो विल जस्ट हैव अ क्विक अंडरस्टैंडिंग कि होता क्या है। ठीक है, सपोज सपोज अगर ये मेरा जो कंडीशन है दैट इज इवेल्युएटिंग टू ट्रू। ठीक है, अगर मेरा कंडीशन जो है, इफ आई एम जस्ट दिस वट एवर कंडीशन आई एम प्रोवाइडिंग ओवर हियर, और इसका आंसर हो गया ट्रू। ठीक है, अगर ये ट्रू हो गया तो व्हाट विल हैपन, ये कोड जो है मेरा, दिस विल डायरेक्टली जंप ऑन टू द ट्रू पार्ट। ठीक है, ये फॉल्स वाले पार्ट की तरफ जाएगा ही नहीं, उसको कोई मतलब ही नहीं है फॉल्स वाले पार्ट से फिर। ठीक है, तो ये ट्रू वाले पार्ट में गया और जो भी ट्रू वाले पार्ट में होगा इट विल एग्जीक्यूट दैट। ठीक है, एंड नाउ सपोज ये वाला कंडीशन मेरा क्या है, ये वाला कंडीशन हैज टर्न्ड आउट टू बी फॉल्स। ये जो मेरा कंडीशन है, ये अब मेरा कंडीशन हो गया, सपोज आई एम जस्ट कंसिडरिंग ये ट्रू नहीं हुआ बट फॉल्स हो गया। तो जब भी ये फॉल्स होगा तो ये कंडीशन ट्रू पार्ट में नहीं जाएगा, ये सीधा कहाँ जाएगा, फॉल्स पार्ट में। ठीक है, तो अगर फॉल्स होगा तो इट विल गो टू द फॉल्स पार्ट, अगर ट्रू होता है तो देन इट विल मूव टू द ट्रू पार्ट। ठीक है, वी हैव टू रिमेंबर दिस। थोड़ा कंफ्यूजिंग आई अंडरस्टैंड, बट यहाँ पे द मेन कॉन्सेप्ट टू ग्रैब इज कि इसका फ्लो क्या होता है, कि कब कहाँ जाता है। ठीक है, तो चलो विल जस्ट हैव अ क्विक लुक एट कि कैसे हम लोग एग्जैक्टली इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जस्ट हम लोग लेते हैं एक एग्जाम्पल छोटा सा। ठीक है, वी विल सी मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, वी विल सी कि मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स, मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबर में बड़ा कौन है। हाउ डू वी चेक इट, अगर हम नॉर्मली अगर बात करते हैं कि हम लोग चेक कैसे करते हैं, अगर मेरा हाउ डू वी से अगर हम लोग बात करते हैं तो इट इज लाइक इफ, अगर मेरा a ग्रेटर देन b है, इफ वी दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज योर नंबर 2। ठीक है, अगर a ग्रेटर देन b है, ठीक है, देन व्हाट डू वी सी, a इज ग्रेटर। ठीक है, और अगर ये ट्रू होने से, इफ इट इज ट्रू, अगर ये ट्रू है, अगर a मेरा बड़ा है b से, then what we will get, we will get a as the answer, correct, a बड़ा होगा। now suppose if this turns out to be false, अगर ये false हो जाता है तब क्या आंसर होगा, मेरा b होना चाहिए आंसर, करेक्ट, सही है। तो यही हम लोग करेंगे, we'll just try to depict this very same problem using a ternary operator। ठीक है, चलो, तो coming here we have ternary operators, so we are going to first store it somewhere, right। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग इसको, क्योंकि वी आर हैविंग नंबर्स तो हम लोग इसको स्टोर कर लेंगे इंट, ओके, इंट a इक्वल टू, सपोज वी आर राइटिंग 10, इंट b is equals to, suppose we are writing 5। I'm just taking basic numbers here, you can just try it out with different numbers। ठीक है, तो ये int a equal to 10, b equal to 5, and now what we can do is we will just store int result। I'm just giving any name, आप भी कुछ भी नाम दे सकते हो, I'm just giving any name, result इक्वल टू, मेरा क्या आता है मैक्सिमम का, तो आई हैव टू आस्क अ क्वेश्चन फर्स्ट, राइट। यहाँ पे क्या है, कंडीशन पूछना है एंड देन वी हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछेंगे, क्वेश्चन वी विल आस्क इज ए ग्रेटर देन बी, एंड वी विल पुट दिस इनसाइड द ब्रैकेट एंड आस्क दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया, अगर ये ट्रू होता है तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर आंसर, आंसर शुड बी ए, राइट। और अगर ये फॉल्स होता है तब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, देन आवर आंसर शुड बी बी, करेक्ट। तब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। लाइक इधर मैंने कहा आपसे कि अगर ए ग्रेटर देन बी है और अगर ट्रू होता है देन आवर आंसर शुड बी ए, करेक्ट। एंड अगर हमारा बी ग्रेटर होता है, सॉरी, अगर हमारा बी ग्रेटर है, सो दिस कंडीशन विल इवैल्यूएट टू फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा और ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वी विल गेट बी एज द आंसर, कि बी बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एग्जैक्टली कि हमारा हो क्या रहा है। ठीक है, तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलता है, वी हैव a इक्वल टू 10 सॉरी, a इक्वल टू 10, तो हमारा जब ये लाइन रीड होता है तो वी गेट a नाम का वेरिएबल एंड इट इज हैविंग 10।
ठीक है, एंड देन इंट बी इक्वल टू 5, तो हमारा एक बी नाम का वेरिएबल बन जाता है विच इज हैविंग 5। ठीक है, इंट रिजल्ट, तो ये क्या हो जाता है, एक जगह और बन जाता है जिसका नाम हो जाता है रिजल्ट। लाइक आई हैव ऑलरेडी सेड कि जब भी इंट ए रीड होता है हमारा क्या होता है, हमारी मेमोरी में एक जगह बन जाती है। ठीक है, और उसके बाद जब इक्वल टू करके उसके अंदर कुछ वैल्यू डालते हैं तो वो वैल्यू उसके अंदर स्टोर हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी हमारा इंट रिजल्ट है तो इंट रिजल्ट के नाम का सिर्फ जगह बन गया। ठीक है, बट ऑलवेज रिमेंबर कि ये इवेल्युएशन पहले होता है देन असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो पहले इवेल्युएट होगा आपका एनीथिंग दैट इज ऑन द राइट साइड, जो भी आपके राइट साइड है इक्वल टू साइन के, दैट इज इवेल्युएटेड फर्स्ट एंड देन इट गेट्स स्टोर्ड इन द रिजल्ट। ठीक है, तो चलो वी विल जस्ट हैव अ क्विक लुक कि इसका आंसर क्या होगा। तो a इज ग्रेटर देन b, a का वैल्यू क्या है, a के अंदर 10 है और b के अंदर कितना है, वी हैव b इज 5। ठीक है, तो a इज ग्रेटर देन b, परफेक्ट, a ग्रेटर देन b है। ठीक है, जब a मेरा ग्रेटर देन b है तो इट इज टेलिंग क्या, ट्रू। ट्रू मतलब किसके पास जाएगा, ये पहले वाले पार्ट के पास, क्योंकि पहला वाला पार्ट इज ट्रू पार्ट। ठीक है, ये पहले वाले पास तो एक ए दे देगा, तो रिजल्ट के अंदर ऑटोमेटिक कौन स्टोर हो जाएगा, ए। तो ए में कौन है मेरा 10, तो रिजल्ट के अंदर 10 स्टोर हो जाएगा। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे कोड लिखते हैं SOPLN, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, द लार्जेस्ट नंबर इज आपका, ये बन गया, प्लस वेरिएबल में हमारा क्या है, रिजल्ट। रिजल्ट के अंदर जो भी है हम लोग उसको स्टोर कर देंगे यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा द लार्जेस्ट नंबर इज, the largest number is आपका हो जाएगा 10। ठीक है, नॉट दिस वन, सॉरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप दिस इज क्लियर विथ ऑल ऑफ यू। ये बहुत इजी है ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर समझने के लिए कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टर्नरी ऑपरेटर को यूज करके कि हम लोग कैसे करते हैं। आई ऑलरेडी हैव अ प्रोग्राम रिटन हियर, सो आओ आई जस्ट शो यू। ठीक है, तो वी आई ऑलरेडी हैव दिस प्रोग्राम रिटन, तो टर्नरी ऑपरेटर एंड ये यू सी द मैक्स। ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे क्या है, इट इज द वेरी सेम प्रोग्राम दैट जो हम लोग ने वहां लिखा था। ए के जगह हम लोगों ने num1 लिया है, बी के जगह में num2 लिया है। तो num1 वी आर स्टोरिंग एज 10, num2 वी आर स्टोरिंग एज 25। ठीक है, दोनों को ले लिया, और जहां हम लोग रिजल्ट लिए थे वी हैव जस्ट गिवन अनदर नेम, यहाँ पे लार्ज कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, लेट मी जस्ट जूम इन लिटिल। ठीक है, यहाँ पे लार्ज कर दिया है, और फिर हम लोग चेक करें num1 यानी ए जो था हमारा वो सिमिलर है, num1 ग्रेटर देन num2 है, अगर है तो num1 को प्रिंट करो, एल्स num2 को प्रिंट करो। ठीक है, दिस इज द वेरी सिंपल प्रोग्राम दैट वी हैव। तो यहाँ पे विल जस्ट सी द आउटपुट, किसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, एंड देन द लार्जेस्ट नंबर इज, वी आर प्रिंटिंग दिस नंबर जिसके अंदर स्टोर हो रहा है जो भी बड़ा होगा दोनों में से। तो विल जस्ट ट्राई आउट बोथ द थिंग्स कि कौन सा हो रहा है। फर्स्ट टाइम वी आर कीपिंग नंबर 2 एज ग्रेटर, 25 रखा है, तो we'll see this we'll see the answer should be the largest number is 25। so we'll just try to run this, right click करते हैं यहाँ पे and then run as and then Java application। ठीक है, तो we'll just look at it over here, थोड़ा ये कर लेते हैं। it is running for the first time so it's taking a little longer। तो यहाँ पे आप आंसर देखिए, this is your the largest number is 25। तो दिस इज गिविंग एज पर आर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, ये बिल्कुल वही प्रोग्राम है जो हम लोगों ने वहां पे देखा था। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, अब फर्स्ट वाले नंबर को हम लोग ग्रेटर करके देखते हैं कि ये सही चल रहा है कि नहीं। तो चलो फर्स्ट नंबर को मैंने कर दिया 100, नाउ दिस नंबर इज 100 एंड द अदर नंबर दैट यू सी हियर इज 25। ठीक है, अब मेरा नंबर 100 है और अभी मेरा आंसर क्या आना चाहिए, नाउ आवर आंसर शुड बी 100। ठीक है, द लार्जेस्ट नंबर इज 100। चलो राइट क्लिक करते हैं एंड देन रन एज and then we will run it as Java application। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो परफेक्ट वी आर गेटिंग आवर आंसर, द लार्जेस्ट नंबर इज, ठीक है यहाँ पे देख लो आप, द लार्जेस्ट नंबर इज 100। ठीक है, परफेक्ट। तो ये हमारा हो गया बिल्कुल वही प्रोग्राम जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। सो दिस इज ऑल अबाउट टर्नरी ऑपरेटर, जो हम लोग टर्नरी ऑपरेटर में देख रहे थे कि एग्जैक्टली ये कैसे करना है। सो दिस वाज समथिंग दैट वी वांटेड टू डिस्कस अबाउट। तो ये हमारा हो गया है आपका टर्नरी ऑपरेटर। कम, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर वाला पार्ट हो गया है। एंड
यस, ये चीज होने के बाद विल जस्ट ऑल्सो लुक एट दिस कि अभी हमारा जो सेकंड वाला काम कैसे कर रहा था एग्जैक्टली तो इंस्टेड व्हाट आई एम डूइंग आई एम जस्ट एडिंग वन मोर जीरो ओवर हियर। तो अब ये हो गया हमारा 100 एंड बी हो गया 5। तो इसका आंसर क्या होगा? अभी ये हो गया 100, चलो यहाँ पे 100 कर दिया हम लोगों ने। अब पूछ रहे हैं, सॉरी दैट वाज ऑलरेडी ग्रेटर, तो अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 105 कर देते हैं इसे। ठीक है, 105 105। चलो, तो अभी क्या है, ये हमारा रिजल्ट क्या होगा? ए ग्रेटर देन बी है। आई एम आस्किंग इज ए ग्रेटर देन बी। तो अभी क्या होगा, ए में 100 है, बी के अंदर 105 है, तो ए तो लेस है। तो दिस विल गिव यू आंसर फॉल्स, ये तो फॉल्स हो जाएगा। और जब ये फॉल्स होगा तो कहाँ जाएगा? ये सीधा बी के पास चला जाता है, करेक्ट। और बी के पास जाएगा तो अब रिजल्ट के अंदर कौन स्टोर हो जाएगा? ये बी आ जाएगा। ठीक है, ये बी का वैल्यू आ जाएगा, करेक्ट। ये बी का वैल्यू गया तो रिजल्ट के अंदर कौन आ गया? अब एक 105, तो 105 हो गया ये। तो लार्जेस्ट नंबर विल बी 105। ठीक है, ये सेकंड वाले में। तो दिस इज हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। अगर ट्रू है तो बस फर्स्ट वाले में जो भी लिखा है उसको मतलब उसको एग्जीक्यूट कर लेता है। अगर नहीं तो फिर ये कहाँ जाएगा? ये दूसरे वाले के पास जाएगा। ठीक है, चल। तो ये हो गया हमारा बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर का पार्ट। सो नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन यूनरी ऑपरेटर, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। अर्थमेटिक ऑपरेटर ऑल्सो वी डिड सी इन द लास्ट क्लास। और देन वी सॉ आपका असाइनमेंट ऑपरेटर जिसमें इक्वल टू साइन था, एंड देन प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू एंड अदर ऑपरेटर्स वर देयर। तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। एंड देन वी ऑल्सो लुक्ड एट द टर्नरी ऑपरेटर। ओके, so now and we also looked at the relational operator, and now we are left with logical operator, because we are not going to move further with shift operator and bitwise operator. Agar if you want to really understand, you can just go through uh, Google, and if after that if you are having any confusion, you can just get back to me. I can help you with the same concept. Okay, so yeah, because it is not needed in our day-to-day working, so I'm not going deep into those concepts, but still logical operator is what we are going to study now, and we are going to look into it. Come, moving to a sheet. Okay, so this is something that we are going to study now. अभी हमारा क्या है, let me just scroll a little up so that हम लोग को लिखने की जगह मिल जाए. Moving in, now we have logical operators. Logical operators, ठीक है. देखो, लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली हम लोग कब यूज करते हैं पता है? वी यूज वेन एवर वी हैव टू कंडीशन. कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को दो कंडीशन चेक करना पड़ता है. विल जस्ट सी एन एग्जांपल एज वेल. तो हमारा दो कंडीशन हम लोग को देखना पड़ता है कि दो कंडीशन में इवन मतलब बोथ आर ट्रू. सिर्फ दो नहीं, मीन्स मोर देन वन. मोर देन वन, ठीक है. ठीक है, वेन एवर, वेन डू वी यूज? वेन एवर वी हैव more than one, more than one आपका conditions. ठीक है, conditions to verify, conditions to verify. जब भी ऐसा होगा, जब भी हम लोग का एक से ज्यादा कंडीशन होगा कहीं पे वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, तब क्या हम लोग को चेक करना पड़ता है, तो वो चीज हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो इसमें बेसिकली जस्ट इरेज दिस. हाँ, इसमें हमारे पास बेसिकली होते हैं दो ऑपरेटर्स. एक है आपका एंड द अदर वन इज और ऑपरेटर. ठीक है, ये और है एंड ये एंड है. ठीक है, तो एंड वाला कब यूज होता है? जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं. ठीक है, एम्फरसैंड एम्फरसैंड. ठीक है, और ये और वाले को कैसे लिखते हैं? ये लंबा लंबा दो लाइन है. ठीक है, ये लंबे लाइन आपको कहाँ मिल जाएंगे? आपके एंटर के ऊपर देखिएगा, आपका जो बैक स्लैश होता है. ठीक है, जो बैक स्लैश होता है तो उसके ऊपर में. ठीक है, तो वेन एवर यू वॉन्ट टू यूज, आप शिफ्ट यूज करके बैक स्लैश को आप प्रेस करोगे तो ये लाइन आ जाएगा. लेकिन याद रखना, एक नहीं दो लिखना है. एम्परसैंड भी आपको एक नहीं लिखना है, आपको दो लिखना है यहाँ पे. ठीक है, याद रखना ये चीज. तो ये हम लोग कब यूज करते हैं? वेन, ये यूज करते हैं वेन वी वॉन्ट all the conditions to be true, all the conditions
टू बी ट्रू। जब हम लोग जितनी भी कंडीशन दे रहे हैं, ठीक है, जितने भी हम लोग कंडीशंस दे रहे हैं, तब यहाँ पे सारे ट्रू होने चाहिए, तब हम लोग ये एम्परसेंड यूज करते हैं, ठीक है। और कब यूज करते हैं? इफ एनी वन, ठीक है, इफ एनी वन, if any, okay, we'll just write number one. If any one condition is true, then we are good. We are good to execute our code part. ठीक है। तो इधर क्या होता है कि हम लोग अपना, हमारा कोड तब चलेगा जब सारे कंडीशन सही होंगे एंड के केस में, एंड फिर और के केस में क्या होता है, अगर जितने भी कंडीशन में अगर कोई भी एक सही है तो देन इट वर्क्स फाइन। चलो, तो इसको अदर वे में इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड तो क्या समझ सकते हैं कि सपोज वी आर जस्ट कंसिडरिंग फॉर द टाइमिंग टू कंडीशंस, हम लोग दो कंडीशन कंसिडर करते हैं, टू कंडीशंस कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो टू कंडीशंस की जब बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा कि सपोज वी हैव, पहले तो ये हो सकता है ट्रू, जो जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो कर लेते हैं, ट्रू ट्रू, देन आपका हो जाए फर्स्ट वाला मेरा कंडीशन ट्रू है एंड देन योर अदर बिकम्स योर फॉल्स, थर्ड वाला कंडीशन है आपका फॉल्स एंड ये वाला कंडीशन हो सकता है कि ट्रू आ जाए, देन इज योर फॉल्स, ये फर्स्ट कंडीशन भी फॉल्स हो गया एंड सेकंड कंडीशन भी फॉल्स हो गया, ठीक है। दिस इज समथिंग जो हम लोग को जानना है कि ट्रू ट्रू है, ट्रू फॉल्स है, फॉल्स ट्रू है, फॉल्स फॉल्स है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी लिख लेते हैं, ठीक है, कि ट्रू ट्रू, उसके बाद ट्रू, देन दिस इज योर फॉल्स, फिर हो गया आपका फॉल्स, दिस बिकम्स योर ट्रू, दिस इज योर फॉल्स एंड दिस इज योर फॉल्स, ठीक है। तो वेन एवर इट इज समथिंग लाइक दिस, तो हमको क्या करना होता है कि ट्रू और ट्रू, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि हम लोग जब ट्रू और ट्रू होगा तो हम लोग को आंसर मिलता है ट्रू, ठीक है, और ट्रू और फॉल्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा फॉल्स। ये क्या है, ट्रू और फॉल्स, ये सॉरी फॉल्स एंड ट्रू, ये भी आपको देगा फॉल्स, एंड फॉल्स ये आपको देगा फॉल्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, ट्रू एंड ट्रू विल गिव यू ट्रू, for true and false will give you true, false and true will give you true, और false and false will give you false, ठीक है। I know this will be a bit confusing कि आपको ये आ कैसे रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहा कि सारे कंडीशन अगर ट्रू होंगे तभी हमारा ये ट्रू होगा, ठीक है, तभी हमारा जो लास्ट का जो बोलते हैं कि लास्ट का क्यूमुलेटिव जो कंडीशन होगा वो ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो कैसे कंसिडर करते हैं, तो चलो जस्ट टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोग क्या करते हैं कि ट्रू को वी विल कंसिडर एज 1 और जो फॉल्स है उसको हम लोग 0 कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो हमारा ट्रू क्या है, ट्रू हमारा हो जाएगा इक्वल, ट्रू को हम लोग 1 कंसिडर करेंगे और फॉल्स को हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स को विल कंसिडर एज 0, ठीक है। तो चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1 एंड 1, ठीक है, ट्रू हो गया तो 1 एंड 0, फिर फॉल्स है तो 0 एंड 1, अब ये हो गया फॉल्स है तो 0 एंड 0, ठीक है। तो यहाँ पे एंड में क्या होता है, एंड वाले में ये समझ लो कि वी आर जस्ट ट्राइंग टू मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 का आंसर क्या होगा, 1 इंटू 1 का आंसर होगा 1, राइट। तो ये देखो 1 आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। 1 इंटू 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, 1 इंटू 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 इज 0, तो 0, 0 का मतलब फॉल्स, 0 प्लस सॉरी 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 किए तो ये भी हो जाएगा 0, और 0 इंटू 0 इज 0, तो देखो आ गई बात समझ में, ये फॉल्स कैसे हो गया। तो जब भी हमारा जब मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी एंड की बात होती है तो वी विल मल्टीप्लाई एंड गेट दिस पर्टिकुलर रिजल्ट, ठीक है, क्लियर नाउ। चलो मूविंग ऑन, कि अब और का ऑपरेटर जब आता है तो यहाँ पे वही कर लेते हैं, 1 1 1 0 0 1 1 1, लेकिन और ऑपरेटर में हम लोग यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई वाला पार्ट देख रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाला पार्ट देखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे।
तो 1+1, तो यहाँ पे हम लोग का कंसिडरेशन क्या है कि कोई भी नंबर अगर 0 से बड़ा है तो वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, एनी नंबर ग्रेटर देन, ठीक है, एनी नंबर ग्रेटर देन या फिर मतलब आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन या इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ट्रू बोलेंगे। तो 1+1 क्या आता है, 2 होता है, तो 0 से बड़ा है तो इट विल बिकम 1, मतलब ट्रू हो जाएगा, ठीक है। 0+1 1+0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 आ गया। 0+1 कितना होता है, 1, तो ये भी ट्रू हो गया, सॉरी ये 0 होगा, फॉल्स इज 0, फॉल्स इज 0, ठीक है। तो 0+0 क्या हो गया, 0, देखो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू कंसिडर इट एज प्लस, और यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को दिस इज जस्ट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आपको समझना कैसे है कि अगर आपके सारे कंडीशन, ऑल द कंडीशंस, जितने भी आपके कंडीशंस थे, अगर सारे ट्रू हैं तभी आपका ये आखिरी में इवेल्युएट होकर ट्रू होगा, ठीक है। और इसमें क्या है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है, ठीक है, अगर हम लोगों ने अभी दो कंडीशन को कंसिडर करके हम लोगों ने अपने टेबल को बनाया है, बट यहाँ पे समझना क्या है कि ऑल कंडीशंस हैव टू बी ट्रू, ठीक है, फॉर आर पर्टिकुलर कोड टू एग्जीक्यूट। और यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी हमारा अगर कोई भी एक, अगर मैं 10 भी कंडीशन दे रहा हूं, अगर एक भी अगर सही है तो वो हमारे कोड को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट वी आर एक्चुअली गोइंग टू अंडरस्टैंड थ्रू अ एग्जाम्पल। चलो, तो हम लोग अभी क्विकली एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यूजिंग द लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर करके चलो, हम लोग अभी मैक्स वाला देख रहे थे, बट दिस टाइम हम लोग क्या करेंगे, वी विल सी मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स। अभी हम लोग क्या देखेंगे प्रोग्राम, मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स, वी आर नॉट गोइंग टू लुक एट मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स, अभी हम लोग 3 नंबर्स देखेंगे। चलो, जस्ट टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सपोज हम ले लेते हैं इंट a इक्वल टू, दिस इज माई नंबर 1, इंट a इक्वल टू, चलो ले लेते हैं 10, इंट b इक्वल टू ले लेते हैं 7, और इंट c इक्वल टू ले लेते हैं 12, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे देखते हैं नॉर्मली, इफ वी सी, हम लोग ऐसे नॉर्मली जब देखते हैं कि इसमें बड़ा कौन है, विच इज बिगर, तो हम लोग चलो एज अ ह्यूमन वी कैन आइडेंटिफाई कि भाई c इज द लार्जेस्ट नंबर, करेक्ट, ये है। बट हम लोग कैसे एनालाइज किए, हाउ डिड वी एनालाइज इट, सबसे पहले क्या किए, वी जस्ट सॉ, ठीक है, कि हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि ए और बी में बड़ा कौन है, ए और बी में बड़ा कौन है, ठीक है। अगर सॉरी, हाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज, अगर ए बड़ा है बी से, एंड, ठीक है, एंड ए इज ग्रेटर देन सी, तो आंसर क्या होता, अगर मेरा ए बड़ा है बी से एंड ए बड़ा है सी से भी, तो सबसे बड़ा कौन होता, ए होता, करेक्ट। अगर ऐसा ही है, अगर मेरा बी बड़ा होता सी से, सॉरी ए, बी बड़ा होता ए से, एंड बी बड़ा होता सी से भी, तो कौन बड़ा होता, तो बी मेरा बड़ा हो जाता, करेक्ट। और अगर मेरा सी बड़ा होता ए से, एंड सॉरी एंड लिख दे रहा हूं, चलो सी एंड को, ठीक है, एंड आपका सी बड़ा होता बी से भी, तो फिर क्या होता, हमारा सी हो जाता आंसर, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वी आर अगेन गोइंग टू यूज टर्नरी ऑपरेटर ओनली, और हम लोग यहाँ पे डिटरमिन करेंगे क्या, हम लोग यहाँ डिटरमिन करेंगे कि हमारा कौन सा बड़ा है, ठीक है, विच वन इज लार्जेस्ट अमंग द 3 नंबर्स, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग लिख लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये 3 लिखा गया है, तो वी विल जस्ट राइट कि चलो कहीं स्टोर कर लेते हैं, इंट मैक्स करके, इंट मैक्स, कि तीनों में बड़ा जो भी होगा विल बी स्टोरिंग इट, ठीक है। सो इंस्टेड लेट मी जस्ट अलाइन दिस अ लिटिल, ठीक है, थोड़ा सा लाइन को सीधा कर लेता हूं ताकि लिखने में हम लोग को जगह मिल जाए, इंट मैक्स, ठीक है। ये वैल्यूज हम लोग यही कंसिडर कर रहे हैं तीनों को, ठीक है, इंट मैक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, विल राइट द कंडीशन पार्ट। तो कंडीशन पार्ट हमारा क्या है, विल यूज डिफरेंट कलर्स हियर। तो सबसे पहले चलो करते हैं, पहला ये वाला कंडीशन लिखते हैं, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी। अच्छा चलो, ये एंड को हटा के हम लोग एम्परसेंड लिख लेते हैं, बिकॉज हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, एम्परसेंड, ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन सही होना चाहिए, ए को बी से भी बड़ा होना है, ए को सी से भी बड़ा होना है, तो बोथ कंडीशन हैज टू, मतलब हैज टू बी सेटिस्फाइड,
फॉर ए टू बी द लार्जेस्ट नंबर, करेक्ट। वैसे बी के लिए क्या है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए तभी ये बी बड़ा होगा, और अगर सी को बड़ा होना है तो ये दोनों कंडीशन को बिल्कुल सेटिस्फाई, अगर ऐसा थोड़ी है कि अगर ए बड़ा है सिर्फ बी से एंड ए छोटा है सी से, तब हम लोग ए को लार्जर बोलेंगे, कैन वी डू दैट? हम लोग नहीं कर सकते है ना। अगर ए मेरा बड़ा है, लाइक सपोज हियर इफ वी टेक द एग्जांपल, ठीक है, लेट्स टेक दिस एग्जांपल, हाँ, ए ए इज ग्रेटर देन बी, परफेक्ट, ये तो ट्रू है, ठीक है, ये इसी एग्जांपल में ले लो, ए इज ग्रेटर देन बी, ये तो मेरा ट्रू आएगा, ठीक है, ये ट्रू हो गया। लेकिन ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन सी, इज 10 ग्रेटर देन 12, नो, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो मेरा क्या है, इस कंडीशन में वी कैन नॉट से ए इज ग्रेटर, राइट, हम लोग इसमें नहीं बोल सकते हैं कि ए बड़ा है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोलेंगे कि बोथ कंडीशन हैज टू बी ट्रू, तो दोनों कंडीशन को ट्रू होना है, तो कौन सा यूज करेंगे, एम्फरसैंड, एम्फरसैंड, ठीक है। तो जब हम, मैंने क्या कहा था, व्हेन ऑल द कंडीशंस हैज टू बी ट्रू, तब हम लोग का आंसर क्या यूज करना है, एंड ऑपरेटर, ठीक है। और अगर कोई भी एक, अगर ऐसा होता कंडीशन की कोई भी एक अगर ट्रू होता तो चलता, तो वहां पे क्या हम लोग और यूज करते, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इज ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, इज ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, ठीक है। जब ये चेक करेंगे, ठीक है, दोनों को चेक करेंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है, अगर ये होगा तब हमको क्या करना है, तब क्या होगा मेरा आंसर, तब मेरा कौन बड़ा हो जाएगा, तब मेरा बड़ा हो जाएगा ए विल बी माई आंसर, कि हाँ ए इज लार्जेस्ट, ट्रू कौन सा होना चाहिए, अगर ये ट्रू है तो आंसर क्या होना चाहिए, इफ बोथ ऑफ दीज इवैल्यूएट्स टू ट्रू, बाई चांस मान लो अगर दोनों ट्रू हो जाता है, ठीक है, तो मेरा आंसर ए होना चाहिए। और अगर नहीं हुआ तो हम लोग इसको चेक करते हैं, तो इसको चलो चेक करेंगे, एल्स पार्ट में क्या हो जाएगा, बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, ठीक है, ये चेक करेंगे, ठीक है। तो बी ग्रेटर देन ए है एंड बी ग्रेटर देन सी, तो ये जब हम लोग चेक कर रहे हैं, विल अगेन पुट अ क्वेश्चन मार्क हियर, ठीक है। और फिर हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोले सॉरी, ओके, लेट मी टेक दिस वन मोर, एक और ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मेरा बी हो जाएगा, एल्स एल्स मेरा क्या हो जाएगा, एल्स मेरा सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई नो यहाँ पे अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग इस तरह से देखते हैं, अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू होता है, ठीक है, हम लोग जैसा कि डिस्कस किए थे, अगर ये मेरा कंडीशन ट्रू होता है तो कौन सा पार्ट इवेल्युएट होता है, फर्स्ट, इस ये कोलन साइन के फर्स्ट वाला पार्ट, है ना, दिस इज व्हाट वी डिस्कस इन द टर्नरी ऑपरेटर। तो अगर मेरा ये कंडीशन सही होता है तो बिल्कुल मेरा ए आंसर होगा, परफेक्ट, ठीक है। अब पकड़ लेते हैं कि ये फॉल्स हो गया, ठीक है, जो कि इस कंडीशन में हो भी रहा है, ठीक है, कि हमारा ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन है, ए ग्रेटर देन बी, परफेक्ट, ये ट्रू है, लेकिन इसका आंसर क्या हो रहा है, ए ग्रेटर देन सी, इसका फॉल्स हो रहा है, तो ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स क्या देगा, मल्टीप्लाई कर लो, 1 × 0 0, यानी फॉल्स की तरफ जाएगा, ये सीधा कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है फॉल्स की तरफ, ठीक है। फिर ये फॉल्स की तरफ गया तो ये क्या किया, यहाँ पे इवेल्युएट कर रहा है, ये क्या इवेल्युएट कर रहा है, ये फिर कर रहा है बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, तो ये चेक कर रहा है बी ग्रेटर देन ए है, बी ग्रेटर देन ए नहीं है, ये हो गया फॉल्स, फॉल्स हो गया, क्योंकि 7 इज नॉट ग्रेटर देन 12, ये फॉल्स हो गया। एंड ये क्या होगा, बी ग्रेटर देन सी, और बी ग्रेटर देन सी है, सॉरी, बी ग्रेटर देन ए मतलब हो गया 7 ग्रेटर देन 10 नहीं है, और 7 ग्रेटर देन सी ये भी नहीं है, तो फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स फॉल्स तो ऐसे जीरो देता है, 0 × 0 0, ये भी हो गया। तो फिर ये कहाँ जाएगा, फिर अपने पास ये सी वाले पार्ट के पास चल जाएगा, क्योंकि फॉल्स हो गया ये पूरा, इसका इवेल्युएशन क्या हुआ, ये वाले पार्ट का इवेल्युएशन पूरे का क्या हुआ, ये फॉल्स इंटू फॉल्स, फॉल्स हो गया, तो फॉल्स हो गया तो ये इधर ले गया सी के पास, तो आंसर हमारा क्या हो गया, मैक्स में कौन स्टोर हो जाएगा, मैक्स में स्टोर हो जाएगा आपका सी, तो सी में कितना था 12, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इज इट क्लियर, यहाँ पे ये कैसे हुआ, ठीक है, ये चीज। बहुत लोग अब पूछेंगे कि हम लोग ये वाला कंडीशन तो नहीं लिखे,
वाई एग्जैक्टली वी डिड नॉट राइट दिस कंडीशन। ठीक है, तो चलो ये भी देख लेते हैं। देखो हो क्या रहा है हम लोग सबसे पहले यहाँ पे दो कंडीशन चेक करें, ए ग्रेटर देन बी एंड ठीक है, ए ग्रेटर देन सी। ठीक है, जब ये दो कंडीशन मेरा आता है तो वी हैव दो ऑप्शन कि आइदर वी विल गेट अ ट्रू या फिर आइदर वी विल गेट अ फॉल्स। ठीक है, और हमारे पास कौन कौन है, ए होगा बड़ा या फिर बी होगा बड़ा या सी होगा बड़ा, करेक्ट। तो हमारा ट्रू या फॉल्स होगा। सपोज वी आर कंसिडरिंग कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, तो आंसर ऑटोमेटिकली विल बी और ए। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर, तो ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आके ये फिनिश हो जाएगा, ये सेकंड पार्ट में जाएगा ही नहीं, ये इस पार्ट में जाएगा ही नहीं। ठीक है, चलो। तो अब क्या है कि बाई चांस मान लेते हैं इट इज फॉल्स। फॉल्स मतलब क्या, अब तो ए हो ही नहीं सकता बड़ा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्किप्ड, क्योंकि ए अगर इसमें से एक भी फॉल्स है तो ए तो बड़ा होगा नहीं, तो हटा देते हैं ए को, या ओमिटिंग ए। तो अब बी और सी के बीच में कॉम्पिटिशन है। चलो, जब ये फॉल्स होगा तो हम लोग क्या बोले, अब हम लोग बी को चेक करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जब फॉल्स होगा तो हम लोग क्या चेक करेंगे, यहाँ चेक करेंगे बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, ये दोनों को चेक किए। ठीक है, नाउ इसमें भी दो कंडीशन हो सकता है। क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, कि आइदर दिस विल रिजल्ट टू ट्रू या फिर ये विल रिजल्ट करेगा फॉल्स में। ठीक है, दोनों को इवेल्युएट करने के बाद। ठीक है, तो अगर ये ट्रू होता है तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आपका बी, राइट। लेकिन बाई चांस ये फॉल्स हो जाता है, बाई चांस ये फॉल्स हो जाता है, तो फिर हमें क्या मिलेगा, फॉल्स हो जाता है मतलब बी भी नहीं हो सकता है, तो सिर्फ कौन बचा, सी। तो वी डोंट नीड टू अगेन चेक, अगर ये होगा तो ऑटोमेटिकली ये सी बन जाएगा। ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव सी ओवर हियर, यहाँ पे जो आप देख रहे हो, दैट्स व्हाई वी हैव सी। हम लोगों ने सी का एक्सप्रेशन नहीं लिखा है क्योंकि ऑटोमेटिकली वो अकेले बचेगा, तो वही हो जाएगा सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारा हो गया एग्जैक्टली कि हम लोग कैसे उसको इवेल्युएट करेंगे और कैसे हमारा आंसर आएगा। ठीक है, नाउ सपोज अगर हम लोग ये कंसिडर करते ए मेरा 100 है। ठीक है, तो क्या होता, ए इज ग्रेटर देन बी, 100 इज ग्रेटर देन 7, परफेक्ट, ट्रू एकदम। ठीक है, एंड बी, सॉरी, ए इज ग्रेटर देन सी, 100 इज ग्रेटर देन 12, परफेक्ट, ये भी ट्रू हो गया। तो ट्रू ट्रू कहाँ जाएगा, ये इस वाले ही पार्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो ए क्या है, ए स्टोर हो जाएगा मैक्स में, तो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्स, मैक्स का वैल्यू हो जाएगा आपका 100। ठीक है, ये हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा अगर ए होने से बड़ा। ठीक है, नाउ वी सॉ कि जब सी बड़ा था, देन वी सॉ कि ए जब बड़ा था। ठीक है, नाउ वी कैन सी ऑल्सो फॉर सी, इसको आप 700 कर दो। ठीक है, तो अभी क्या है देखो यहाँ पे कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है मतलब 100 ग्रेटर देन 700, नो, ये हो गया फॉल्स, पहला वाला पार्ट हो गया हमारा फॉल्स। अब 700 ग्रेटर देन, सॉरी, अब 100 ग्रेटर देन 12, ये तो ट्रू है। ठीक है, चलेगा, बट क्योंकि एक फॉल्स है तो मतलब ये सीधा जाएगा कहाँ, फॉल्स वाले पार्ट में, सीधा उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया, यहाँ आने के बाद इसका क्या हो जाएगा, फिर ये चेक करेगा बी 700 ग्रेटर देन ए है, बिल्कुल है। ठीक है, ये हो गया ट्रू, ये वाला पार्ट हो जाएगा ट्रू। फिर ये जो दूसरा पार्ट है बी ग्रेटर देन सी, तो बी कितना है, बी मेरा है 700 ग्रेटर देन 12, बिल्कुल है, तो ये भी हो जाएगा मेरा ट्रू। जब ये भी ट्रू ये भी ट्रू तो ट्रू, तो ये कहाँ जाएगा, बी के पास, तो इसमें कौन स्टोर हो जाएगा मैक्स में, 700, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 700 स्टोर हो जाएगा, और जब लास्ट में आउटपुट करेंगे तो वी विल गेट 700। ठीक है, तो ये होता है इस तरह से एग्जैक्टली हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। ठीक है, चलो, तो विल जस्ट गो एंड लुक थ्रू अ प्रोग्राम। यहाँ पे हम लोगों ने मैक्स किया है, विल जस्ट गो एंड लुक फॉर वन लॉजिकल ऑपरेटर का प्रोग्राम, एंड यहाँ पे हम लोगों ने मिन का प्रोग्राम किया है। ठीक है, बिल्कुल सेम है, जस्ट वी हैव चेंज द साइन। यहाँ पे हम लोग ग्रेटर देन साइन था, वी हैव रिप्लेस दैट विथ लेस देन साइन। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने लेस देन साइन किया, देखो ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन सी, तब हम लोग ए को दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वही कर रहे हैं, बी इज लेस देन ए एंड बी इज लेस देन सी, तब बी और सी को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, एंड देन वी हैव सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा है प्रोग्राम, जहाँ पे हम लोग अलग अलग वैल्यूज को लेकर बिल्कुल चेक कर सकते हैं, एंड वी कैन सी द आउटपुट, हम लोग बिल्कुल आउटपुट यहाँ रन करके देख सकते हैं।
कि हमारा क्या आ रहा है कि मिन लिख के आएगा एंड विच एवर इज द मिनिमम। तो अभी यहाँ पे हमारा 7 इज मिनिमम, राइट। हमारा 7 आंसर आना चाहिए। चलो क्लिकिंग राइट क्लिक किए हैं एंड देन वी आर गोइंग टू जावा एप्लीकेशन। देखो यहाँ पे इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, यहाँ पे देखो मिन एंड देन 7, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंड वी कैन चेंज द वैल्यू एज वेल, कि अब हम लोग किसी और को मिन कर लेते हैं। चलो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, अब ए वाले को कर देते हैं, तो इसको 70 कर देते हैं। तो नाउ मिनिमम शुड बी 10, राइट। तो चलो वी विल राइट क्लिक हियर, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड वी विल गो टू रन एज। चलो तो यहाँ पे इफ यू गो एंड सी दिस, नाउ वी आर गेटिंग मिन एज 10, ठीक है। एंड सिमिलरली वी कैन डू फॉर दिस वन एज वेल। तो हम लोग को इसको मिन करना है, तो चलो इसको 700 कर देते हैं और इसको 100 कर देते हैं एंड वी विल सी कि अब हमारा मिन क्या आ रहा है। मिन हमारा 12 आना चाहिए, ठीक है। रन एज जावा एप्लीकेशन एंड हियर इफ यू सी नाउ हमारा जो मिन है दिस इज 12, ठीक है। तो दिस इज एग्जैक्टली जो हमारा था, ठीक है। ओके so we are done with this particular thing कि हमारा कैसे है, ठीक है। we just saw exactly how things are here and if we want we can just do a quick dry run। हम लोग अपने प्रोग्राम का क्विक एक ड्राई रन भी कर सकते हैं। we'll just look at this program and just try to do a dry run for this one, ठीक है। and after that we will move further, ठीक है। चलो तो अभी क्या करते हैं हम लोग, इसको ड्राई रन ले लेते हैं। तो विल जस्ट टेक अ स्निपिंग टूल एंड विल टेक द स्निप ऑफ दिस वन एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द ड्राई रन फॉर दिस। चलो लेट मी जूम इन अ लिटिल, ठीक है। चलो हमारा जूम हो गया एंड विल जस्ट चेक आवर प्रोग्राम। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, चलो तो वी हैव ए, ठीक है। तो हम लोग को जब भी ऐसा होता है, तो मैंने क्या कहा है, हमेशा मेमोरी में मतलब जगह बनती है। तो जब भी ये फर्स्ट टाइम हम लोग जब रीड करता है ना, तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ बॉक्स, अभी हम लोग बॉक्स अब नहीं बनाएंगे, अब हम लोग बस ऐसे लिख लेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है। दिस इज मेमोरी, ये मेमोरी क्रिएट हो गई है, ठीक है। और इसके अंदर फिर स्टोर कौन सा हो गया, 100 हो गया, 100 स्टोर हो गया, ठीक है। देन योर बी, तो बी को हम लोग क्या करते हैं, बगल में ही लिख लेते हैं, ठीक है। विल राइट बी हियर, बी लिख लिया एंड देन यहाँ पे हमारा हो गया बी इज 12, ठीक है। देन कम, तो ये टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है हमेशा। जावा का प्रोग्राम टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करता है अनलेस एंड अनटिल वी आर ब्रांचिंग। जब तक हम लोग ब्रांचिंग नहीं कर रहे हैं तब तक ये ऐसे ही चलेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या हो गया, बी हो गया, देन कम्स योर सी, ठीक है। ये बी हो गया एंड देन इज योर सी, और सी में क्या है हमारा, सी में है 700, ठीक है। तो ये 700 हो गया। तो ये तीनों लाइन को इसने रीड कर लिया। नाउ वेयर इट इज, यहाँ पे आ गया हमारा कर्सर। यहाँ पे आने के बाद इंट मिन किया, मिन किया तो यहाँ पे एक मिन नाम की जगह बन जाएगी, MIN मिन नाम की जगह बन गई। लेकिन अब क्या होगा, ये पहले इवेल्युएट करेगा, उसके बाद मिन में स्टोर करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या स्टोर कर चेक करेगा, ए लेस देन बी, ए लेस देन बी। तो ए जो है आपका 100 लेस देन 12 है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। ये फॉल्स हो गया, तो इसके अंदर तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये पहले फॉल्स हो गया, मतलब ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि बीच में एंड ऑपरेटर है और एक भी फॉल्स मतलब फॉल्स, ठीक है। तो यू कैन जस्ट मूव टू अदर पार्ट, बट स्टिल इफ यू वांट टू चेक, अगर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब क्या हो गया, ए लेस देन सी, तो 100 लेस देन 700 है, तो ये ट्रू हो रहा है। तो फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू विल गिव यू फॉल्स। तो ये कहाँ सीधा जाएगा आपको लेकर, ये जाएगा आपको फॉल्स वाले पार्ट में, ठीक है। ये फॉल्स वाले पार्ट में जाएगा। तो यहाँ पे जब गया तो ये क्या करेगा, अब चेक करेगा, बी लेस देन ए है, इट विल चेक इज योर बी लेस देन ए। तो 12 लेस देन 100 बिल्कुल है, ट्रू। फिर ये चेक करेगा बी लेस देन सी, तो बी जो है यानी ये 12 आपका लेस देन 700 है, बिल्कुल है। तो जब ट्रू एंड ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू विल रिजल्ट इनटू ट्रू। और ये जो ट्रू है तो ये जाएगा बी के पास, और ये क्या है, बी कहाँ स्टोर हो जाएगा, बी स्टोर हो जाएगा मिन में। तो बी में हमारा कितना था, 12, तो मिन में कौन स्टोर हो गया, 12, ठीक है। अब हम लोग जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, वी विल गेट min
क्योंकि हम लोग जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैसेज लिखते हैं वो एज इट इज आ जाता है, तो मिन एंड देन योर प्लस मिन, तो प्लस मिन में क्या है यहाँ पे 12, ठीक है। तो दिस विल बी योर फाइनल रिजल्ट। आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन वन थिंग कि आप ड्राई रन कीजिए, बिकॉज ड्राई रन इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको करना चाहिए, ठीक है। So always remember, whenever you are doing a program, you should try to understand the logic, ठीक है। And if you know dry run, I can bet on anyone कि that person will be able to comprehend the biggest problems in IT, या फिर अगर आप किसी ने कोड लिखा है तो you will be easily able to understand कि उस कोड में हो क्या रहा है, ठीक है। So this is the power of dry run, ठीक है। तो dry run आपको बिल्कुल सीखना है, ठीक है। चलो सो वी सॉ एग्जैक्टली कि हमारा ये क्या है ड्राई रन वाला पार्ट, एंड ओके सो आई जस्ट क्लोज दिस नाउ। आई होप एवरीथिंग इज अंडरस्टूड अप टिल हियर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है आपका टर्नरी ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड नाउ वी आर डन विथ आर ऑपरेटर पार्ट। हम लोगों ने सारे ऑपरेटर्स अपने देख लिए हैं, एंड जब हम लोगों ने यूनरी ऑपरेटर देखा था तो वी डिड सी अ प्रोग्राम ऑन दैट एज वेल। यूनरी ऑपरेटर के साथ प्रोग्राम देखा था कि पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स हाउ डज इट वर्क, राइट। एंड देन वी ऑल्सो चेक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, हम लोगों ने वहां पे मल्टीप्लिकेशन एडिशन करके देखा था, एंड देन एज पार्ट ऑफ आवर कैप्सूल हम लोगों ने डिवाइड एंड रिमाइंडर करके देखा किया था प्रोग्राम। देन we learned today assignment operator, relational operator, logical operator, and ternary operator. These operators we have completed, and since we are not going to go much into detail for shift operator and bitwise operator, so I'm leaving it on you, so you can just check it on Google if you want to go deep into this, because it is not used in our day-to-day life, so I'm just skipping this. Okay, so we are done with operators in Java, and now we will be moving to our next thing, that is if else. Okay, so अब हम लोग आ जाते हैं if else में कि exactly हमारा जो if else है how does it work, ठीक है। तो अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि if else exactly है क्या, ठीक है। चलो मूविंग ऑन, तो थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेते हैं। तो चलो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी if else, if else, ठीक है। तो इफ एल्स में इन टर्नरी हम लोगों ने देखा था कि मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स, राइट। तो हम लोग उसमें कंडीशन लगाए थे। तो यहाँ क्या होता है कि वी वर आस्किंग अ क्वेश्चन, टर्नरी में हम लोग क्या कर रहे थे, वी वर जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन। एक कंडीशन था, देयर वाज अ कंडीशन, और उस कंडीशन को सी इट वाज लाइक दिस, उसका जो सिंटैक्स था इट वाज लाइक दिस, टर्नरी का आई एम सेइंग, ठीक है। तो कंडीशन एंड देन योर क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद फिर ये ट्रू वाला पार्ट मैं ट्रू लिख दे रहा हूँ, ट्रू होने से, एंड देन योर फॉल्स पार्ट, ठीक है। ये हो रहा था हमारे टर्नरी ऑपरेटर में, राइट। तो बिल्कुल इसमें भी ऐसा ही होता है इफ एल्स में भी, ठीक है। इफ में अगर आपका कंडीशन ट्रू होता है तो इफ के अंदर जाएगा, और अगर फॉल्स होता है तो एल्स के अंदर जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम चीज, एंड वी डिड सी अ प्रोग्राम, राइट। हम लोग ने जो प्रोग्राम देखा था विल टेक दैट एज अ बेस, एंड हम लोग फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो वी हैड मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स, मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था। तो चलो इफ एल्स के साथ देखते हैं एग्जैक्टली होता क्या है। तो चलो इफ में ऐसे लिखेंगे इफ, एंड देन ये जो कंडीशन था, दिस पर्टिकुलर कंडीशन, ये कंडीशन हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इफ हमारा कंडीशन क्या था, मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स में a इज ग्रेटर देन b। अगर मेरा a इज ग्रेटर देन b, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अपने मैक्स में किसको स्टोर कर रहे थे, मैक्स इज इक्वल टू हम लोग स्टोर कर रहे थे आपका a को, राइट। a को स्टोर कर रहे थे, ठीक है। एल्स एल्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे मैक्स इज इक्वल टू b, ठीक है। ये हो गया। तो चलो यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली ये है क्या। इफ का मतलब क्या होता है इफ का मतलब अगर हिंदी में बात करें तो इट बिकम्स योर अगर। अगर a बड़ा है b से, अगर a बड़ा है b से, तब गो इनसाइड दिस करली ब्रेसेस, ये करली ब्रेसेस के अंदर जाओ। नहीं तो, एल्स मींस नहीं तो, ठीक है। नहीं तो गो इनसाइड दिस करली ब्रेसेस, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इफ
मतलब अगर ए ग्रेटर देन बी है तो फिर मैक्स क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू ए हो जाएगा। अगर नहीं है तो मैक्स कौन हो जाएगा, इक्वल टू बी हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कर देंगे SOPLN system dot out dot println max the largest number is प्लस मैक्स। ठीक है, ये कर लेंगे। तो अभी हम लोग सिर्फ छोटा सा पार्ट लिखे, यहाँ पे आप लिख लो इंट ए इक्वल टू आपका जो भी लिखना है 10, इंट बी इक्वल टू 5 और फिर इंट मैक्स। ठीक है, इंट मैक्स लिख लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम जहां पे हम लोग बिल्कुल सेम किए हैं, कुछ नहीं है। अगर ये ट्रू हो रहा है तो इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, कहाँ पे जाना है हम लोग को, इस ब्रैकेट के अंदर जाना है अगर ट्रू है। ठीक है, यानी ये ट्रू वाला पार्ट था ना आपकी कंडीशन में, टर्नरी ऑपरेटर में अगर कंडीशन सही है तो ये ट्रू में जाएगा। तो अगर ये कंडीशन सही है तो ये इसके अंदर जाता है, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर। और अगर फॉल्स है तो एल्स के पास जाएगा और सीधा इस ब्रैकेट के अंदर आके खड़े हो जाता है। ठीक है, तो इस ब्रैकेट के अंदर वाले चीज को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग चेक लेते हैं इस वाले एग्जाम्पल को, ए इज ग्रेटर देन बी, तो देखो ये बिल्कुल सही है कंडीशन, 10 इज ग्रेटर देन 5, परफेक्ट। तो मैक्स के अंदर क्या आ जाएगा, मैक्स हो जाएगा मैक्स इक्वल टू ए के अंदर कितना है 10, तो मैक्स इक्वल टू 10 हो जाएगा। और जब ये कहाँ है फिर एल्स में नहीं जाएगा, रिमेंबर दिस, इट वोंट गो इनसाइड एल्स। ठीक है, भले टॉप बॉटम होता है लेकिन ये एल्स के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक ही के अंदर जा सकता है, या तो इफ के अंदर जाएगा, ठीक है, ये आइदर इफ के अंदर जाएगा, आइदर ये इनसाइड इफ जाएगा, इनसाइड इफ, और इनसाइड एल्स। ठीक है, तो एक के अंदर जाएगा, या तो इफ के अंदर जाएगा या एल्स के अंदर जाएगा, दोनों के अंदर कभी नहीं जाएगा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, एक ही के अंदर जाएगा, तो ये इसके अंदर गया। ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पे सही है तो मैक्स के अंदर गया, और ये एल्स वाले पार्ट को स्किप कर दिया। तो एल्स वाला पार्ट कहाँ तक स्किप होता है, जहां तक उसका अपना ब्रैकेट होता है। ठीक है, ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हो ना, ये ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट तक के पार्ट को स्किप कर देता है और फिर यहाँ पे आके अपना कोड आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है हमारा कर्सर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, या तो इफ यानी इस ब्रैकेट वाले पार्ट को करेगा, या फिर इस ब्रैकेट वाले पार्ट को करेगा। ठीक है, और अगर जो दो में से कोई भी एक होगा, ठीक है, तब फिर ये लास्ट वाले लाइन के पास आएगा। ठीक है, याद रखना है ये चीज, यानी ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल्स जहां पे अभी हम लोग देखा। अभी हम लोग क्या करते हैं, विल जस्ट चेंज दिस नंबर क्विकली। तो हम लोग इस नंबर को चेंज करते हैं एंड विल मेक दिस एज 50। ठीक है, ये 50 हो गया अब हमारा। तो अभी देखो मैक्स क्या है, ए ग्रेटर देन बी है, यानी 10 ग्रेटर देन 50 है, नहीं है, नहीं है अभी। तो ये कहाँ है, इस वाले पार्ट के अंदर जाएगा, इस वाले पार्ट के अंदर नहीं जाएगा, इस वाले पार्ट के अंदर नहीं जाएगा। और ये क्या करेगा, स्किप कर देगा इसको, इसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये कहाँ है, एक ही के अंदर जा सकता है, या तो इफ के अंदर जाएगा या एल्स के अंदर जाएगा। तो ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ, इफ के अंदर तो जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गया यहाँ पे, कंडीशन फॉल्स हो गया है तो इफ के अंदर नहीं जाएगा। रिमेंबर दिस गाइस, ये कभी इसके अंदर नहीं जाएगा अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो। ठीक है, तो ये सीधा कहाँ जाएगा, ये एल्स के पास गया, एल्स के पास गया, और एल्स के पास जाके ये क्या करेगा, मैक्स इक्वल टू बी, यहाँ पे आके खड़ा हो गया, एंड ये जाएगा मैक्स इक्वल टू बी। तो मैक्स कौन हो जाएगा, मैक्स इक्वल टू हो जाएगा 50, मैक्स में 50 हो गया। अब क्या हो जाएगा, फिर ये अपने इसके बाहर निकलेगा, ब्रैकेट के बाहर तो सारे कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो SOPLN द लार्जेस्ट नंबर इज मैक्स, तो ये क्या कर देगा, द लार्जेस्ट नंबर इज 50। तो आंसर क्या हो जाएगा, द लार्जेस्ट नंबर इज 50। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा एक बेसिक सा प्रोग्राम था जो आपका था इफ एल्स को यूज करके, जो कि बिल्कुल रेप्लिका है आपका टर्नरी ऑपरेटर का, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, तो कोई दो में से एक ही एग्जीक्यूट होता है, दोनों एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, चलो, तो अभी हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो विल जस्ट गो एंड चेक कि मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा द लार्जेस्ट नंबर इज मैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो num1 और num2 लिया गया है एंड इंट मैक्स, जो मैंने सेम चीज लिखा था सेम चीज है। एंड देन वी हैव इफ num1 इज ग्रेटर देन num2, तो फिर ये जाएगा मैक्स इक्वल टू num1, एल्स मैक्स इक्वल टू num2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम, एंड देन वी हैव system.out.println द लार्जेस्ट नंबर इज मैक्स। ठीक है,
तो ये हम अपना कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल प्रोग्राम हमारा चलेगा परफेक्टली। अगर आप देखो यहाँ पे तो राइट नाउ वी शुड गेट 200 एज द आंसर, ठीक है। द लार्जेस्ट नंबर इज 200। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, ठीक है। देखो यहाँ बिल्कुल 200 आ रहा है हमारा, ठीक है। द लार्जेस्ट नंबर इज 200, ठीक है। तो चलो विल जस्ट ट्राई टू इंक्रीज इट टू 1000। हम लोग पहले वाले को 1000 कर देते हैं जस्ट टू चेक कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं परफेक्टली। तो रन एज and Java application, and here if you see the largest number is 1000 now, ठीक है। perfect, so this is completed from our end exactly हमें जो चीज करना था, and we are able to see कि this is working perfectly fine for us, ठीक है। तो ये हो गया हमारा maximum of 2 numbers using if else, ठीक है। चल, तो अब क्या है, नाउ वी ऑल्सो चेक कि हमारा मल्टीपल कंडीशंस हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो मल्टीपल कंडीशंस जब हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग जैसे एग्जांपल देखा था लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, द लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स हम लोग को निकालना था, ठीक है। तो लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर्स अमंग 3 नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, वी हैड एक्चुअली 2 कंडीशन हमारे, अगर टर्नरी ऑपरेटर को भी देखोगे तो जब पहले ए का कंडीशन था एंड देन व्हेन इट वाज फेलिंग, यानी जब हमारा फॉल्स हो रहा था, देन वी हैव बी का कंडीशन, और बी के कंडीशन के बाद देन वी हैड आपका जो लास्ट वाला पार्ट था, दैट इज वेयर सी का जो फॉल्स होने से, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वी विल बी यूजिंग इफ, यानी 2 बार कंडीशन अलग अलग जगह आ रहा है, तो इफ फिर एल्स के साथ इफ, ठीक है। उसके बाद गो विथ एल्स, इफ, एल्स इफ एंड देन कम्स योर एल्स, ठीक है। पहले क्या आ रहा था, इफ एल्स, अगर 2 ही कंडीशन मतलब एक ही कंडीशन है जिसको हम लोग को देखना पड़ता है तो इफ एल्स के साथ हो जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग को 2 बार कंडीशन चेक करना होता है तो इफ देन कम्स योर एल्स इफ एंड देन योर एल्स, ठीक है। तभी हम लोग देखते हैं लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर्स, तो हमारा जो कंडीशन था विल जस्ट राइट इट दैट वे। तो चलो लिख लेते हैं, int a equal to 10, int b equal to 7, int c equal to 12, ठीक है। चलो, तो हमारा कंडीशन जो पहले था विल जस्ट राइट इट दैट वे इफ, ठीक है। इफ का आई छोटा होगा, याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर इफ a इज लेस देन, सॉरी इज a इज ग्रेटर देन, हम लोग मैक्सिमम देख रहे थे, इफ a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c, ठीक है। अगर ये होगा तो हम लोग आंसर क्या होना चाहिए, हम लोग का मैक्स कौन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इंट मैक्स भी ले लो, इंट मैक्स, ठीक है। तो हमारा मैक्स कौन होना चाहिए, मैक्स शुड बी और a, ठीक है। एल्स इफ सेम लाइन में लिखना है, स्पेस देके एल्स और इफ के बीच में स्पेस होगा, एल्स इफ, अब इफ लिखे हैं तो फिर कंडीशन लिख लेंगे, ठीक है। अब कौन है, b ग्रेटर देन a एंड b ग्रेटर देन c, तो फिर हमारा आंसर कौन हो जाएगा, हमारा हो जाएगा मैक्स इक्वल टू b हो जाएगा, करेक्ट। तो जब भी हम लोग कंडीशन लिखेंगे तो एल्स के साथ हम लोग कंडीशन का भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो एल्स के साथ क्या लगाना होगा, इफ लगाना होगा। तो एल्स इफ b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड b इज ग्रेटर देन c, तब मैक्स इक्वल टू b, ठीक है। एल्स हमारा क्या हो गया, सॉरी लेट मी जस्ट राइट इट अगेन, ठीक है। एल्स अगर a बड़ा नहीं है, b बड़ा नहीं है, तो हु विल बी बिगर, लार्जेस्ट कौन हो जाएगा, लार्जेस्ट विल बी और c, तो ये हो जाएगा c। और यहाँ पे फिर एल्स का जब सबका ब्रैकेट बंद हो गया, खत्म हो गया, देन SOPLN सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द लार्जेस्ट नंबर इज प्लस मैक्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिक सा प्रोग्राम, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग बस चेक कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी वही है, अगर हमारा कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है, एंड हमेशा टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है, इन केस दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, ठीक है जैसे अगर हम लोग देखते हैं इस कंडीशन को, 10 है, 7 है एंड 12 है, ठीक है। तो a इज ग्रेटर देन b, बिल्कुल ट्रू है ये, ठीक है। 10 इज ग्रेटर देन 7, a इज ग्रेटर देन c, 10 इज ग्रेटर देन c, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। जब ये फॉल्स हो गया हमारा,
तो ये मैंने क्या कहा, वेन एवर इट इज फॉल्स, ये बाहर चले जाता है, इस वाले ब्रैकेट के बाहर आ जाता है। तो कौन है अभी, एल्स इफ है, ठीक है, इस वाले ब्रैकेट के अंदर वो जाएगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो पहले कह दिया है कि किसी भी एक के अंदर जाएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, ठीक है, ये स्किप हो जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। एल्स इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है, तो बी को देख लेते हैं, 7 ग्रेटर देन ए है, नहीं है, ये तो पहले फॉल्स हो गया, ठीक है, एंड बी इज ग्रेटर देन सी, ये भी फॉल्स हो गया। तो ये क्या है, ये इसके अंदर भी नहीं जाएगा, क्योंकि कंडीशन अभी भी ट्रू नहीं है, तो इसके अंदर, अपने वाले के अंदर भी नहीं जाएगा, तो ये वाला भी क्या होगा, स्किप हो जाएगा। तो अब क्या, ये कहाँ जाएगा, एल्स के पास जाएगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम होता है, तो पहले ये वाला आया, फिर ये वाला, अब इसकी बारी आई है, ठीक है। एल्स, एल्स में कौन आएगा, एल्स में आएगा मैक्स इक्वल टू सी, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये इसके अंदर आके खड़ा हो जाएगा, और मैक्स इक्वल टू सी, तो मैक्स के अंदर क्या हो जाएगा, मैक्स इक्वल टू हो जाएगा 12, क्योंकि सी के अंदर 12 था, तो देखो द लार्जेस्ट नंबर इज 12 आ जाएगा आंसर, परफेक्ट, ठीक है। नाउ कंसिडर करते हैं अभी हम लोग चेंज करके कि दिस इज योर 100, ठीक है, चलो, तो डिलीट कर देते हैं, और उसके बाद फिर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, चलो। चलो, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये ए 100 है, ठीक है, तो ए ग्रेटर देन सॉरी, ए इज ग्रेटर देन 100, ए इज ग्रेटर देन 100, तो सॉरी 100 ग्रेटर देन 7, ट्रू है। देन कम्स ए ग्रेटर देन सी, यानी 100 ग्रेटर देन 12, ये भी ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू विल गिव यू ट्रू, तो मैक्स में मेरा क्या हो जाएगा, मैक्स में हो जाएगा मेरा 100, ये 100 हो जाएगा मैक्स में, ठीक है, ये 100 हो गया मैक्स में। तो अब क्या है, जब ये पार्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया है, तो ये नीचे के किसी भी पार्ट में नहीं जाएगा, इट वोंट गो इनसाइड एल्स इफ, यानी इस ब्रैकेट के बीच के अंदर नहीं जाएगा, इस ब्रैकेट के बीच के अंदर नहीं जाएगा, तो ये ब्रैकेट सब हट जाएगा, इसके मतलब वहां तक नहीं होगा, तो ये भी स्किप हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हैंडल हो गया है ऊपर, ये भी स्किप हो जाएगा, सिर्फ कहाँ जाएगा, ये इसके पास जाएगा, यानी इस वाले ब्रैकेट के बाहर आके जाएगा, ठीक है, SOPLN द लार्जेस्ट नंबर इज मैक्स, ठीक है, तो मैक्स में कौन हो जाएगा, 100, क्योंकि मैक्स में ए स्टोर हो गया था, ठीक है, तो ये हो गया। तो चलो, अभी हम लोग दो कंडीशन देख लिए, जहां पे हमारा एक बार सी बड़ा हो गया था, एक बार ए बड़ा हो गया, तो एक और कंडीशन देख लेते हैं जहां पे हम लोग बड़ा करते हैं बी को, ठीक है, एंड देखते हैं फिर हमारा कैसे जा रहा है, ठीक है, चलो, मैं ब्रैकेट्स को फिर लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है, चलो, तो ये हमारा जो प्रोग्राम है, विल जस्ट सी, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 120 कर देते हैं इसे, ठीक है, सॉरी, सी को तो हम लोग बड़ा कर चुके हैं, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ए का हटा देते हैं, ए का हटा देते हैं, ए का हम लोग 10 ही कर देते हैं, ठीक है, ए को 10 कर देते हैं, एंड इसे 70 कर देते हैं, ठीक है, चलो, तो बी अब हमारा 70 है। तो अभी क्या है, हमारा हो जाएगा, सॉरी, लेट मी रिमूव दिस एज वेल, ठीक है, चलो, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी हमारा ए इज ग्रेटर देन बी, यानी 10 70 से बड़ा है, नहीं है, फॉल्स, फॉल्स हो गया तो मतलब इसके अंदर जाएगा ही नहीं, बट स्टिल विल चेक। तो ए ग्रेटर देन सी, 10 12 से बड़ा है, ये भी फॉल्स हो गया, तो ये वाला तो स्किप हो जाएगा, इसके अंदर तो जाएगा ही नहीं, ये तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, ये तो श्योर है, और यहाँ पे आके हमारा कर्सर खड़ा हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट हो गया स्किप, क्योंकि वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये फॉल्स हो गया, दोनों का आंसर फॉल्स हो गया, ठीक है, क्योंकि और एंड लगा है, तो फॉल्स इंटू फॉल्स, टोटल आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है, तो ऐसे इवेल्युएट कर एलसिफ, एलसिफ में उसके बाद चेक, बी ग्रेटर देन ए, 70 ग्रेटर देन 10, बिल्कुल है, ट्रू, ठीक है, एंड
तो ये भी सही है। एंड बी ग्रेटर देन सी, बी जो है 70 ग्रेटर देन सी, ये भी ट्रू। और ट्रू एंड ट्रू, टोटल आंसर क्या हो गया? ट्रू। तो जब टोटल हमारा ट्रू हो गया तो ये कहाँ अंदर जाएगा? ये इसके अंदर जाएगा। ठीक है, तो मैक्स क्या हो जाएगा? मैक्स मेरा हो जाएगा मैक्स इक्वल टू बी हो जाएगा। तो बी कौन है? बी 70। यहाँ हो जाएगा मेरा मैक्स इक्वल टू 70। और यहाँ पे ये एल्स के अंदर अब नहीं जाएगा, तो ये वाला पार्ट ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएगा, यानी ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट तक का पार्ट स्किप हो जाएगा। ठीक है, ये स्किप हो गया। ठीक है, ये स्किप हो गया। तो ये कहाँ जाएगा? ये सीधा जाएगा लास्ट वाली लाइन में, इस ब्रैकेट के बाद यहाँ पे आके, एंड देन इट विल प्रिंट SOPLN, द लार्जेस्ट नंबर इज मैक्स। तो ये हो जाएगा 70। सो वी डिड सी फॉर ऑल द 3 वेरिएबल्स, हमारा ये बिल्कुल सही परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, एंड वी ऑल्सो हैव अ प्रोग्राम मैक्स ऑफ 3 नंबर्स हियर, इफ यू सी कि वो बिल्कुल सेम प्रोग्राम लिखा गया है 100 12 27 करके, एंड वी हैव दिस। सो अगर हम उसे रन करते हैं तो वी गेट द वेरी सेम आंसर। अभी मैक्सिमम शुड बी 100, तो ये देखो बिल्कुल हम लोग को 100 मिल रहा है। वी आर गेटिंग 100 एज द आंसर। ठीक है, एंड इफ यू जस्ट गो ऑन टू चेंज बी को अभी कर देते हैं ग्रेटर, तो इसे 120 कर देते हैं, सॉरी, तो सेव कर लेते हैं। एंड अगेन विल जस्ट ट्राई टू रन दिस, रन एज, ओके, रन एज जावा एप्लीकेशन कर देते हैं। तो लेट्स सी, द आंसर इज नाउ 120। ठीक है, अब फिर चलते हैं, हम इसको 270 कर देते हैं जस्ट टू चेक आवर आंसर कि परफेक्ट आ रहा है या नहीं। तो दिस इज डन, एंड चलो जस्ट रन दिस। ओके, फर्स्ट लेट मी सेव इट, कंट्रोल एस, ओके, रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, नाउ द आंसर शुड बी 270, बिल्कुल परफेक्ट आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, एंड वी डिड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वन एज वेल कि हमारा क्या है। ठीक है, तो चलो विल जस्ट क्विकली लुक इनटू द ड्राई रन पार्ट ऑफ इट। ठीक है, हम लोग जल्दी से ड्राई रन देख लेते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर गाइस, हमेशा इफ के नीचे होता है। ठीक है, इफ के नीचे ब्रैकेट्स होते हैं, और जब खुलेगा तो वो पहले अपना बंद भी होगा। एल्स इफ के बाद भी वही है कि ब्रैकेट खुलेगा और अपने में बंद होगा, फिर एल्स के बाद अपना खुलता है, और एल्स, तो जिसका भी खुलता है वो अपने बाद खुलता है। लाइक क्लास का देखो, क्लास जब डिफाइन हो गया उसके बाद ये ब्रैकेट्स खुले हैं। ठीक है, ये बंद लास्ट में हुए। फिर ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो हमारा मेथड है, इसका भी ब्रैकेट वैसे ही है, ये यहाँ पे खुला और यहाँ पे बंद हुआ है, बिकॉज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर ही हम लोग कोड लिखते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। तो चलो हम लोग जल्दी क्विकली देख लेते हैं हमारे प्रोग्राम का स्निप लेके कि ड्राई रन कैसा है, एंड देन वी विल जस्ट मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो हम लोग बस क्विकली एक ही ड्राई रन देखेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू मूव मच इनटू डिटेल ऑफ दिस वन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जब प्रोग्राम रीड होता है, इट गोज टू दिस लाइन। ठीक है, तो मैं चेंज कर लेता, हाँ, इट गोज टू दिस लाइन। जब इंट ए दिखेगा तो ये ए नाम का जगह बना लेगा, एंड इट विल स्टोर 100। ठीक है, फिर इंट बी वाले लाइन पे आएगा, इंट बी इक्वल्स टू 120। तो चलो यहाँ लाइन बना लेते हैं, बी क्या हो जाएगा? 120। ठीक है, चलो इंट सी इक्वल टू 270, फिर सी के लिए जगह बना लेते हैं, सी हो गया आपका 270। ठीक है, चलो फिर इंट मैक्स, तो चलो मैक्स के लिए भी जगह बना लेते हैं, क्योंकि मेमोरी में जो होता है हम लोग बिल्कुल कोड के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, अब ये क्या चेक कर रहा है? इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अब 100 120 से बड़ा है, चलो ये हो गया फॉल्स। ठीक है, एंड ए, आई शुड हैव इंक्रीज द फॉन्ट अ लिटिल, चलो आई थिंक नाउ इट विल बी विजिबल। ठीक है, ये फॉल्स हो गया। अब आ जाते हैं ए ग्रेटर देन सी। ए 100 ग्रेटर देन 270 है, नहीं है, तो ये भी हो गया आपका फॉल्स। ये तो हट गया, खत्म हो गया, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ये वाला पार्ट स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा? ये एलसिफ में आ जाएगा। ठीक है, यूपी इस ब्रैकेट तक, इस ब्रैकेट के अंदर तो गया ही नहीं, तो इस ब्रैकेट के बाहर आके खड़ा हो गया, एलसिफ में आ गया। अब चेक करें, बी ग्रेटर देन ए है, 120 ग्रेटर देन 100, बिल्कुल है, ट्रू है। ठीक है, एंड बी ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन सी, ये फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, तो दोनों का आंसर क्या हो गया? ट्रू एंड फॉल्स का हो गया आंसर फॉल्स। ठीक है, जब फॉल्स हो गया तो इसके अंदर भी नहीं जाएगा, क्योंकि टोटल आंसर क्या हुआ? जब इवेल्युएट किया दोनों को तो आंसर हो गया मेरा फॉल्स। जब ये फॉल्स हो गया है तो ये इसके अंदर भी नहीं जाएगा, तो ये वाला पार्ट भी हो जाएगा मेरा स्किप। तो अब ये कहाँ जाएगा? ये सीधा जाएगा एल्स के पास, एल्स के पास गया, और ये क्या हो जाएगा? मैक्स इक्वल टू सी। तो मैक्स में क्या हो जाएगा? सी, यानी 270। और उसके बाद हम जो प्रिंट करेंगे द लार्जेस्ट नंबर इज, तो हमारा हो जाएगा
द लार्जेस्ट नंबर इज, ये हो जाएगा आपका आंसर 270। मैक्स में क्या है 270। ठीक है, तो दिस इज समथिंग जिस तरह से हम लोग ड्राई रन करेंगे, और ये बिल्कुल समझ के करना है। ठीक है कि कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है, और अगर इसके बाद हम किसी और पे वैल्यू बढ़ा देते हैं, अगर मान लो सपोज इफ आई हैव टू डू समथिंग, तो चलो हम लोग कंट्रोल जेड कर लेते हैं पहले, कंट्रोल जेड, लेट मी जस्ट हैव दिस, ये हो गया, इरेज कर लेता हूँ जल्दी से। ठीक है, एंड वी विल जस्ट इंक्रीज दिस अ लिटिल, और फिर देखते हैं एग्जैक्टली चलो 270 विल इंक्रीज, इस वैल्यूज को भी हटा देता हूँ। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा, तो ये मैं लिख के रखा हूँ। ठीक है, ये एक्चुअली लास्ट में प्रिंट होता, ये जो लास्ट वाला दिख रहा है। ठीक है, मैं बस पहले से लिख के रख लिया हूँ, तो लेट मी चेंज द कलर। चलो, तो ये है, हम लोग क्या करते हैं, ये जो 100 है, 100 को हम लोग क्या करते हैं, अभी 270 वॉज ग्रेटर, तो अभी हम लोग बी को बड़ा कर देते हैं, बी को हम लोग 1200 कर देते हैं। ठीक है, चलो ए में मेरा जब आया फर्स्ट टाइम कोड, तो ये क्या है 100 स्टोर कर दिया। ठीक है, फिर जब बी में आया तो ये 1200 स्टोर कर देगा, फिर सी में आया तो 270 स्टोर करेगा। ठीक है, चलो 270 स्टोर कर लिया। अब आया ये चेक करेगा ए ग्रेटर देन बी है, इज माई ए ग्रेटर देन बी, यानी 100 ग्रेटर देन बी है, नहीं है, तो ये पहले ही फॉल्स हो गया। फिर दूसरा क्या है, ए ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन सी, ये भी नहीं है, फॉल्स, क्योंकि 100 इज लेस देन 270, तो इसका आंसर तो ऐसे ही फॉल्स हो गया, तो इसके अंदर तो जाएगा नहीं, ये स्किप हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आया एलसिफ में आया, अब चेक करा बी ग्रेटर देन ए, यानी 1200 ग्रेटर देन 100, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, एंड चेक कर रहा है बी ग्रेटर देन सी, यानी 1200 ग्रेटर देन 270, बिल्कुल है। तो ट्रू एंड ट्रू, ये हमको देगा ट्रू, और ट्रू होगा तो फिर ये इसके अपने अंदर वाले अंदर जाएगा, तो मैक्स इक्वल टू बी हो जाएगा। तो मैक्स में कितना हो जाएगा 1200। ठीक है, और जब कोई भी तीनों में से एक एग्जीक्यूट हो जाता है, अगर ऊपर में कोई भी एक एग्जीक्यूट हो जाता है तो नीचे वाला नहीं होता है, तो ये ऑटोमेटिक स्किप हो जाएगा। ठीक है, यानी इस वाले ब्रैकेट के बाद आके मेरा कर्सर खड़ा हो जाता है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, सिस्टम डॉट प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर इज मैक्स, तो मैक्स में कितना है 1200। ठीक है, तो बिल्कुल ये इस तरह से चलेगा। हमारा सेकंड वाला देख लिया, अब लास्ट वाला एक हम लोग ड्राई रन देख लेते हैं, जहाँ पे हम लोग इसको हम लोग ए को बड़ा कर देंगे, एंड वी विल चेक फॉर द लार्जेस्ट नंबर, कि हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी ए को बड़ा कर देते हैं, विल जस्ट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ए को अभी हम लोग कर देते हैं 1000 कर देते हैं। ठीक है, तो अभी जब ए रीड होगा, ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा 1000, फिर बी का क्या हो जाएगा 120, एंड योर सी विल बी 270। ठीक है, let me erase this one as well. चलो, तो अभी क्या है ये हो गया, तो ये होने के बाद मैक्स मैक्स मेरा एम्प्टी रहेगा। ठीक है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ये 1000 इज ग्रेटर देन 120, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, उसके बाद फिर चेक करा एंड ए ग्रेटर देन सी, यानी 1000 ग्रेटर देन 270, बिल्कुल है, ये भी ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू विल गिव यू ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू हो गया, तो फिर ये अपने वाले के अंदर जाएगा, अपने वाले के अंदर जाएगा तो मैक्स इक्वल टू ए कर देगा, तो ये हो जाएगा आपका 1000 हो गया, वो 1000। अब ये क्या करेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, अगर एक के अंदर भी चला गया तो नीचे वाला दो मतलब नीचे वाले स्किप हो जाएंगे, तो ये वाला एलसिफ स्किप हो जाएगा, और ये भी स्किप हो जाएगा, तो ये सीधा आ जाएगा यहाँ पे सिस्टम डॉट में द लार्जेस्ट नंबर इज 1000, मैक्स मैक्स में कौन है 1000। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कैसे एग्जैक्टली हमारा प्रोग्राम वर्क करता है। ठीक है, तो ये ड्राई रन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम एम्फसाइजिंग फ्रॉम द बिगिनिंग कि ड्राई रन करो, ड्राई रन करो, ड्राई रन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट गो थ्रू इट, कि ड्राई रन कैसे करना है, जस्ट गो थ्रू वन बाय वन, एक एक लाइन को एक एक करके करोगे तो बिल्कुल समझ जाओगे कि ड्राई रन में आंसर क्या आता है। ठीक है, सो दिस वाज मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स, कि हम लोग ने देखा कि इफ एल्स इफ और एल्स के साथ कैसे वर्क करना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स हियर इज, क्या इफ अकेले हो सकता है, मैं हम लोगों ने देखा इफ एल्स के साथ आया, इफ एल्स
इफ के साथ, एल्स इफ एल्स के साथ आया, तो कैन इफ एग्जिस्ट अलोन। ठीक है, तो चलो इसके लिए हम लोग हमारा क्वेश्चन है कैन इफ एग्जिस्ट अलोन, एग्जिस्ट अलोन। तो बिल्कुल इफ हमारा अलोन एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो अलोन कैसे एग्जिस्ट करेगा, विल जस्ट हैव अ क्विक अंडरस्टैंडिंग। देखो यहाँ पे, तो अगर जैसे माय क्वेश्चन इज चेक इफ अ नंबर इज इवन, अगर मुझे चेक करना है एक नंबर इवन है कि नहीं। डू यू नो क्या हो एग्जैक्टली डू वी चेक अ नंबर इज इवन और नॉट। ठीक है, यानी हम लोग कब बोलते हैं कोई भी नंबर इवन, वी से अ नंबर इज इवन व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 2, राइट। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर होता है अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 2 है। तो होना क्या चाहिए, बहुत लोग के भी दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम लोग इस तरह से करेंगे, कोई भी नंबर है, सपोज ए इज द नंबर। ठीक है, अगर ए नंबर है, ठीक है, तो लेट्स नॉट टेक ए, हम लोग नम 1 ले लेते हैं। अगर हमारा जो भी नंबर है नम 1, या नंबर लिख लेते हैं नम। ठीक है, नम को हम लोग डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो ये हमारा आना चाहिए आंसर। ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, ये सही नहीं है। ठीक है, क्यों सही नहीं है, बिकॉज देखो अगर हम लोग करते हैं 8 को, ठीक है, इफ वी डिवाइड 8 बाई 2, 8 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो ये आंसर क्या देगा, 2 4 ज़ 8। ठीक है, एंड द रिमाइंडर विल बी 0। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर हम लोग एक और इवन नंबर लेते हैं, तो क्या हमको आंसर मिलेगा 2 डिवाइड बाई 10, 10 इज ऑल्सो इवन नंबर, तो 2 5 ज़ा और ये 10 एंड फिर 0। लेकिन हम लोग को ये डिवाइड करने से क्या मिलता है, डिवाइड करने से वी गेट द क्वोशिएंट। क्या मिलता है, क्वोशिएंट मिलता है। क्वोशिएंट किसको बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को। ठीक है, तो हर बार देखो क्या हो रहा है कि अगर हम लोग 8 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कोई भी इवन नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग को एक अलग नंबर मिल रहा है, यहाँ पे 4 मिल रहा है, यहाँ 5 मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम 16 को करते हैं, 16 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, 16 को करते हैं, तो 2 8 ज़ 16, तो इस बार फिर अलग नंबर मिला है। ठीक है, इस बार फिर अलग नंबर मिला है विच इज 8, तो फिर अलग नंबर मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वी शुड नॉट गो विद नम डिवाइड बाई 2। इंस्टेड हम लोग क्या चीज, देखो कॉमन क्या हो रहा है, जब भी कोई नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, देखो रिमाइंडर पार्ट, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, करेक्ट। तो हम लोग को डिवाइड वाला करना, डिवाइड के लिए क्या यूज करते हैं, मॉड, नम मॉड 2। और इसका आंसर क्या आना चाहिए, हमेशा कभी भी कोई इवन नंबर है तो आंसर क्या आता है, कभी भी करने से रिमाइंडर क्या आएगा, दिस विल गिव अस रिमाइंडर, राइट। ये हम लोग क्या देगा, रिमाइंडर देगा। और कभी भी हमारा इवन नंबर है तो रिमाइंडर क्या आता है, 0, राइट, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो हम लोग को क्या चेक करना है कि नम मॉड 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये सही अगर आ रहा है तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर इज इवन, तब हम लोग इवन बोलेंगे ना, तब बोलेंगे कि हम लोग इवन है, करेक्ट। देखते हैं अब हम लोग कोई ऑड नंबर को लेकर डिवाइड करके, देखो यहाँ पे जैसे हम लोग अगर 13, 13 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, बिकॉज मॉड लिए हम लोग, तो रिमाइंडर देखेंगे, सॉरी 13 को अंदर लिखना था, चलो, तो ये हो गया हमारा, हम लोग यहाँ 13 लेते हैं, तो 2 6 12। ठीक है, तो रिमाइंडर 1, कोई भी आप नंबर लो, ठीक है, कोई भी आप नंबर ले लो, सपोज आई एम टेकिंग 2 डिवाइड बाई 7 ले लो। ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6, योर रिमाइंडर विल बी, सॉरी, योर रिमाइंडर विल बी 1। आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, योर रिमाइंडर विल बी 1, राइट। लेट मी जस्ट राइट इट अगेन, योर रिमाइंडर विल बी 1। ठीक है, तो ये देखो, तो जब भी ऑड नंबर होगा तो आपका रिमाइंडर या तो 1 आएगा या 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि अगर इक्वल टू 0 है तो हम लोग बोल देते हैं कि भाई इवन नंबर है। ठीक है, तो इसके लिए प्रोग्राम कैसे लिखेंगे कि चेक इफ अ नंबर इज इवन, तो इसके लिए बस एक ही तो प्रोग्राम लिखना है कि हम लोग एक नंबर ले लेते हैं, इंट नम 1, नंबर 1 इक्वल टू मान लेते हैं 10।
ठीक है, इफ num1 मॉड, इसको हम लोग 2 से अगर मॉड करेंगे तो आंसर आना चाहिए 0, तो ये हो जाएगा इवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, SOPLN इवन इवन नंबर। ठीक है, ये हो गया मेरा इवन नंबर। तो ये बिल्कुल सही प्रोग्राम है। अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखना चाहें तो हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं प्रोग्राम। ठीक है, विल जस्ट गो एंड चेक इट हियर। ठीक है, इवन नंबर का है। ठीक है, आई एम रिमूविंग दिस पर्टिकुलर पार्ट, कंट्रोल एक्स। ठीक है, ये देखो, ठीक है, तो चलो, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। देखो आप, इवन नंबर हम लोग लिखा है, बिल्कुल वही प्रोग्राम है कि इंट num1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, चलो 10, जो हम लोग ने एग्जाम्पल देखा 10 लिख लेते हैं। ठीक है, तो num1 mod 2 इक्वल टू 0, ये हमारा इवन नंबर चेक करेगा एंड वी विल जस्ट सी कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो रन एज जावा एप्लीकेशन। देखो ये बिल्कुल दे रहा है, इवन नंबर है। तो हम लोग कुछ और नंबर ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, 100 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। देखो ये भी इवन नंबर दे रहा है हम लोगों को, करेक्ट, ये भी इवन नंबर दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, दे परफेक्टली रन कर रहा है। बट आई वुड नेवर रिकमेंड एनी वन टू यूज ओनली इफ अलोन, क्योंकि देखो होगा क्या ना, अगर हम इसको 101 देते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, विल जस्ट रन दिस प्रोग्राम, हम लोग रन करके देखते हैं और वी विल नोटिस समथिंग इन दिस एरिया, यहाँ पे जो इवन नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, रन एज करेंगे तो जस्ट सी, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, नथिंग इज कमिंग। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है हम लोग को। ठीक है, तो जब ये कुछ नहीं आ रहा है, इट इज बिकॉज कि हम लोगों ने दिया नहीं है वो चीज। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को बिल्कुल पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग मान लो एटीएम जा रहे हैं, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ एटीएम। ठीक है, कि हम लोग एटीएम जा रहे हैं और वहां पे वी आर जस्ट ट्राइंग टू डिस्पेंस कैश, हम लोग जा रहे हैं, कार्ड डाल रहे हैं, अगर मशीन में कैश है तो वो हम लोग कैश दे देगा। ठीक है, बट सपोज मशीन में कैश अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और हम लोग गए अपने कार्ड से स्वाइप किए हैं, पिन विन सब कर दिए, कैश का अमाउंट वगैरह सब डाल दिए एंड एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, उसके बाद सपोज कैश नहीं निकलता है, नाउ वी विल बी वरीड, राइट, और कुछ मैसेज डिस्प्ले भी नहीं हो रहा है, हमारा जो एटीएम का डिस्प्ले होता है उस पर कुछ मैसेज अभी शो भी नहीं कर रहा है वहां पे। तो फिर क्या होगा, वी विल गेट वरीड, है ना, कि प्रॉब्लम हो गया, अरे क्या हो गया, कैश भी नहीं निकला, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डिडक्ट हो गया हमारे बैंक से। तो वी जनरली हैव दिस टेंडेंसी ऑफ गेटिंग वरीड कि हमको कुछ अगर नहीं पता चलता है तो, अगर कहीं पे कुछ एरर आ रहा है बट हम लोग को पता ही नहीं कि एरर क्या आ रहा है, हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दैट। ठीक है, तो फिर बेटर क्या होता है कि हमेशा शो करो कि हाँ दिस इज समथिंग, आपका अगर ये काम नहीं किया है देन दिस शुड बी कैसा, तो वहां अगर मैसेज शो कर देता है कि देर इज नो कैश इन दी एटीएम या फिर ऐसा कुछ भी है, ठीक है, नो कैश अवेलेबल, अगर ऐसा शो करता है तो आप संतुष्ट होंगे कि हाँ ठीक है, इसमें कैश नहीं है, ओके आई जस्ट गो टू द नेक्स्ट एटीएम एंड वहां से हम अपना कैश निकाल लेंगे। ठीक है, जनरली यही होता है हमारे साथ। तो यहाँ पे इसी तरह से एकदम यूजर फ्रेंडली होना चाहिए कभी भी, वेन एवर यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम, प्रोग्राम को हमेशा यूजर फ्रेंडली बनाना है, सो दैट एवरीबडी हु इज एक्चुअली यूजिंग इट दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। वरना फिर यहाँ तो आदमी फंस जाएगा, ये तो क्या हो रहा है। ठीक है, somebody who knows the program is okay, बट जिसको नहीं पता है, जो एकदम लेमैन होता है, जिसको एकदम अंडरस्टैंडिंग नहीं है प्रोग्राम की, वो तो डर जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखना है, एल्स लिखना है, एल्स एंड देन राइट योर कोड। एल्स के अंदर लिखो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, क्योंकि हम लोग को सिर्फ इवन नंबर चेक करना था, तो हम नॉट गोइंग टू राइट की ऑड नंबर, तो यहाँ पे इंस्टेड हम क्या लिखेंगे, नॉट एन इवन नंबर, नॉट एन इवन नंबर। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो, अभी हम लोग इसे रन करेंगे तो वी विल गेट अ परफेक्ट कोड। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट कोड देगा कि नॉट एन इवन नंबर। तो अब क्या है, ये बिल्कुल यूजर फ्रेंडली हो गया एंड सारी चीजें यहाँ पे हो गई है कंप्लीट। ठीक है, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर up till here, and in the next class we will be going further into some more concepts of Java, and thank you.